पर हमारे चैम्बर के प्रमुख श्री विजय भाई मेवावाला उपस्थित है। मैं जिन जिन का आपको परिचय करवाता हूं उनके लिए यहां से आपका तालियों का नाद अपेक्षित है। विजय भाई मेवावाला, प्रेसिडेंट दसन जिला चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, शहर का जाना माना नाम चार्टर्ड अकाउंटेंट श्री प्रदीप कुमार सिंघी जी, प्रीमियम मेंबर ऑफ HCCI, जिनके द्वारा ये प्रीमियम मेंबरशिप का ख्याल हमें आया है और उसकी शुरुआत हुई है। ऐसे हमारे प्रदीप जी मार्गदर्शक भी हमारे रहे हैं और प्रीमियम मेंबर और हमारी जो ये बहुत ही जाना माना सिग्नेचर क्लब के हमारे पायोनियर रहे हैं। जीतो के भी आप पास्ट प्रेसिडेंट रहे हैं, सूरज जीतो के एडवाइजर अभी हैं आप जीतो के। हमारे साथ वाइस प्रेसिडेंट डायनेमिक वाइस प्रेसिडेंट निखिल भाई मदरासी से, हमारे साथ रोहित भाई तिवारी उपस्थित हैं जो डायरेक्टर दिशा फाउंडेशन, जो आज के उपक्रम में 3 संस्थाएं हैं, इनमें से दिशा फाउंडेशन से श्री रोहित भाई तिवारी जी हैं। सूरत में है तो एक और चार्टर्ड अकाउंटेंट और फाइनेंशियल जिनको टाइकून कहा जा सकता है, ऐसे कृणाल भाई मेहता, वो भी हमारे बीच हैं। हमारे साथ मितेश भाई गांधी उपस्थित है, उन्हें भी हम ताली के नाद से के जो महामंत्री जी हैं। और ये खचाखच भरा हुआ ये हॉल ऑडियंस हमारे सामने उपस्थित है। तो आज का कार्यक्रम का जो विषय है उसकी जानकारी देने के लिए कि आज का विषय जो हमारे सामने रखा गया है उसके बारे में मैं मितेश गांधी जी से विनती करूंगा कि आप अबाउट द प्रोग्राम व्यक्त करें। Good evening, everyone. Jai Jinendra. It's an honor to welcome you all to this session, The Idea of Entrepreneur, Social Cultural Responsibility. Today we are here to explore how businesses can go beyond profits to contribute meaningful to society and culture. Entrepreneurship is just not about wealth, it's about impact. It's about driving innovation, creating jobs, and uplifting our communities. This session explores balancing economic success with socio-cultural responsibility. Our distinguished speaker, Dr. Vinay Sahasrabudhe, brings unparalleled expertise on this topic. As President of Indian Council of Cultural Relation, ICCR, and a thought leader in cultural inclusion, his insights will guide us how business can align with social and cultural values. Corporate social responsibilities is gaining momentum globally, with over $20 billion spent in 2023 on education, healthcare, and sustainability. India stands out, contributing 25,000 crore to CSR program last year. Surat, Khubsurat Surat is contributing over 5% to India's GDP through textiles and diamonds. Goes beyond economics, over 40% of small business actively supports cultural events and NGOs and heritage prevention, showcasing the link between entrepreneur and social cultural responsibility. Businesses prioritize cultural and social values, see 15% high customer loyalty and 12% greater employees satisfaction. Over 60% of Indian startups now include community outreach, reflecting next generation focus on giving back. Entrepreneur can drive change by preserving heritage, supporting education, and promoting diversity. Notably, 72% of millennials prefers companies actively involved in community welfare. This session, we will explore actionable strategy for integrating social and cultural values into our business. This is just about doing
this isn't is just about doing good. It's about doing well while doing good. I urge each one of you to engage actively in this dialogue, ask questions, share ideas, and take inspiration from today's discussion. Together, we can create business ecosystem that not only thrives economically but uplifts the society. Lead us with purpose to grow with the values. I acknowledge presence of Mr. Pradeep Ji Singhi, who is not only a pioneer of Jito from Surat, but from all over the India. And our Jito's core goal is earn, learn, and return. And today's program is all about how to give return to society. Thank you. Thanks everyone. मितेश जी, आपने एकदम सही कहा कि हाउ वी कैन पे बैक टू द सोसाइटी। आज के कार्यक्रम का जो हार्द है वो आपने बताया। आज हमारे साथ जो हस्तियां जुड़ी हुई है उनमें से द सदन गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के पूर्व प्रमुख श्री रुपिन भाई बच्चीगढ़, उनकी हाजिरी की हम नोट लेते हैं। वी रिकॉग्नाइज द प्रेजेंस ऑफ रुपिन भाई बच्चीगढ़, who has been associated with so many organizations. We also recognize the presence of our past president and past president of SCPC, Sri Arvind Bhai Kaparia. हमारे और एक पूर्व प्रमुख और टेक्सटाइल इंडस्ट्री के महारथी ऐसे हमारे आशीष भाई गुजराती की हम we recognize the presence of आशीष भाई गुजराती. We also have some dignitaries from Jito. नितिन जी मेहता की उपस्थिति की हम नोट लेते हैं। नितिन जी आप आगे आइए, यहाँ पे आपके लिए आप आगे आइए। श्री गौरव जैन, उनकी उपस्थिति की भी हम नोट देते हैं। श्री उदित तलेरा जीतो के, श्री राजीव मरड़िया, राजीव जी आपकी उपस्थिति की हम नोट देते हैं। हमारे एजेंडा में हम आगे बढ़ते हैं और मितेश जी आपने कहा कि प्रदीप जी पायोनियर है जीतो भारत के, लेकिन मैं कहूंगा कि प्रदीप जी जहां होते हैं वहां पायोनियर ही होते हैं। तो मैं इनवाइट करूंगा सेरेमोनियल एड्रेस के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रदीप सिंघी जी को। मेरे ख्याल से मेरी आवाज सब तक पहुंच रही है ना भाई? देखो बाकी चीज तो मुझे समझ में नहीं आएगी कुणाल भाई, सिर्फ एक चीज समझ आती है, मनी मनी मनी। ऐसा कि मैक्सिमम लोग यहाँ पर जो हैं शायद सूरत के बाहर से आ रहे हैं और मैक्सिमम लोग सिर्फ जोश उत्साह उमंग लेकर आए हैं, पैसे लेकर नहीं आए थे। मितेश भाई आपकी धरती का प्रताप है कि हम लोग पैसे लेके नहीं आए थे और आप लोगों की धरती का हमारे ऊपर ऋण है कि आप लोगों की धरती ने, यहाँ के पानी ने, यहाँ के हवामान ने, उसको बोलो बंद करेगा फोन बंद कर दे। हमारे थिंकिंग प्रोसेस में, मैक्सिमम लोगों के थिंकिंग प्रोसेस में बेटरमेंट किया है, माइक्रो से मैक्रो इकोनॉमी की तरफ हमको बढ़ाया है, सोचने के तरीके में परिवर्तन किया, दिल के भाव को बेटर किया है। मैं जब 40 साल पहले यहाँ आया था चार्टर्ड अकाउंटेंट के, उस समय मैं जो था और आज जो मैं हूँ, तो मैं निश्चित रूप से अपने आप को बहुत ज्यादा इस धरती के प्रति एहसानमंद मानता हूँ कि इस धरती ने बहुत कुछ दिया। तो आ गए हैं, निश्चित रूप से स्वागत है वेना सर का, डॉक्टर वेना सर तालियां बजा के इनका स्वागत करता है। वी वेलकम आवर चीफ गेस्ट डॉक्टर विनय सहस्त्रबुद्धे जी। तालियों का नाद वो मंच तक, अपनी कुर्सी तक पहुंचे, तब तक बना रहना चाहिए। हमारी जोरदार तालियों के साथ आपका स्वागत है। बधाई, नमस्कार। बात को जब शॉर्ट पूरी करते हुए
जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं जो सूरत प्रॉपर की धरती के नहीं है, यानी जो बाहर से आए हुए हैं, सबको निश्चित रूप से खड़े होकर सूरत की धरती के वतनी को एक बार वंदन जरूर करना चाहिए, और मैं उनमें से आपके साथ वंदन कर रहा हूँ। अरे यार यार इतना मत शर्माओ यार, यस ये धरती का एहसान मानो, थोड़ा धरती का एहसान मानो और सोचो पहले क्या थे, धरती ने क्या बना दिया है। कोई व्यक्ति ये सोच रहा है कि वो बहुत बुद्धिमान तो होशियार था, टैलेंटेड है, सब झूठी बातें हैं। ये धरती का प्रताप है, ये धरती का ऋण है, हम सब के ऊपर ऋण है, और ये अगर भूल जाते हैं तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कमी है आप में, मुझे हम में। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया। स्पीकर से ज्यादा मोटिवेटर हैं और आप एक ही बात ऐसी छेड़ देते हैं। ये कहाँ से बात आई कि सूरत हमारा है आपका नहीं है, ये कैसे हो सकता है? सूरत सोनानी मूरत, जिन्होंने सूरत को लूटा है उन्होंने सूरत को आबाद किया है, किसी ने बर्बाद नहीं किया है। शिवाजी के जमाने से ये बात है। यहाँ पे राजस्थानी भी हैं, यहाँ पे उत्तर प्रदेश भी है, यहाँ पे सौराष्ट्र भी है, लेकिन हर एक ने सूरत को बड़ा बनाया है, आबाद बनाया है। अरविंद भाई और रुपिन भाई और आशीष भाई, हम सब सूरती यहाँ बैठे हैं, लेकिन हम ये जानते हैं कि सूरत में कंट्रीब्यूशन, और जैसे दूध में शक्कर मिल जाती है इसी तरह हम सब मिले हुए हैं और वही सूरत की शान है। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। मैं हमारे प्रमुख श्री विजय भाई मेवावाला से विनती करूंगा कि आप स्वागत प्रवचन प्रपोज करें। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। मुन्ना भाई ने पहले भी बोल दिया था कि मेरा गला थोड़ा खराब है। आज हम द आइडिया ऑफ एंटरप्रेन्योर सोशो कल्चर रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंतर्गत विषय पर इकट्ठे हुए, और इस सेमिनार में मैं आपका हृदय से स्वागत करता हूँ। इस मंच पर विराजमान फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, राज्यसभा एवं एक्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशन एवं रामबाव महाली प्रबोधिनी के वाइस चेयरमैन डॉक्टर विनय सहस्त्रबुद्धे जी, प्रीमियम मेंबर ऑफ एसडीसीसी एवं जीतो सूरत के एडवाइजर श्री प्रदीप भाई सिंघी जी, दिशा फाउंडेशन के डायरेक्टर श्री रोहित भाई तिवारी, जीतो के सूरत के सेक्रेटरी श्री नितेश भाई गांधी, एसडीसी गोल्ड मेंबर और हमारे मित्र मेटाबिल के श्री कुणाल भाई मेहता, मेरे साथी वाइस प्रेसिडेंट श्री निखिल भाई मद्रासी, ऑनररी सेक्रेटरी नीरो भाई मांडलेवाला, ऑनररी ट्रेजरर श्री मुनाल भाई शुक्ला, एसडीसीसी और जीतो के माननीय सदस्यगण, उद्यमी साहसिकों और व्यापार बंधुओं, एसडीसीसीआई, जीतो सूरत और दिशा फाउंडेशन के संयुक्त प्रयासों से आयोजित ये आइडिया ऑफ एंटरप्रेन्योर सोशियो कल्चरल रिस्पॉन्सिबिलिटी में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। खास इस सेशन में हमारे बीच पधारे डॉक्टर विनय सहस्त्रबुद्धे जी का खास स्वागत करता हूँ कि वह सूरत के उद्यम साहसिकों को मार्गदर्शन देने हेतु आज हमारे बीच सूरत की धरती, जिसे उद्यम साहसिकों की धरती भी कहा जाता है, उस पावन भूमि पर पधारे हैं। दोस्तों, इस उद्यम साहसिक का सिर्फ देश के आर्थिक विकास में ही नहीं बल्कि समाज के निर्माण में भी एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उनकी जिम्मेवारी केवल मुनाफा कमाने तक सीमित नहीं है, बल्कि सांस्कृतिक एवं सामाजिक कल्याण पर सकारात्मक प्रभाव डालने के बारे में है। प्रदीप जी ने अभी कहा कि सूरत की पानी में, सूरत की धरती में ऐसा कुछ है कि सूरत आफत में से अवसर बनाती है। कोई भी आफत सूरत में आती है, उसमें से अवसर कैसे ढूंढना है, वो सूरत के पानी में है, सूरत के जुनून में है, सूरत की धरती में है, सूरत के रहने वालों में है। और जैसे प्रदीप जी 40 साल पहले यहाँ आए थे, ऐसे बहुत सारे लोगों ने यहाँ के सूरत को विकसाया है। और गुजराती में कहा जाता है ना, रोटलो અને ઓટલો સુરતમાં મળી જ જાય છે, અને જેને રોટલો અને ઓટલો મળી જાય છે તે લોકો જીવનમાં આગળ પણ ઘણા વધે છે। सूरत कोविड की बात करूं तो हम लोगों ने भी यहाँ 500 बेड की अस्पताल बनाई थी, और ऐसे बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जिन्होंने पैसा ना देखते हुए लोगों का जीवन बचाने के लिए बहुत सारे पैसे खर्च किए थे और लोगों की बहुत सारी मदद की थी।
इसलिए सिर्फ पैसा तो कमाता है सूरत में आके, मगर लोगों की सेवा, लोगों की मदद, और हम तो अपनी लाइफस्टाइल बना लेते हैं पैसा कमा के, हम तो अपने हिसाब से जी लेते हैं, मगर जब तक सामने वाले को अपने समान नहीं बनाएंगे, बिजनेस में, व्यापार में कोई जल्दी या कोई बात में आगे पीछे बढ़ सकता है, मगर सामने वाले की परिस्थिति देखकर उनको हम अपनी समान का दर्जा नहीं देंगे, तब तक बिजनेस ने कमाया हुआ पैसा का कोई मतलब नहीं होता है। इसलिए जितना पैसा कमाते उसमें से अमुक % पैसा सोशल एक्टिविटी में, लोगों की मदद करने में भी लगाना चाहिए, ऐसा हम जानते हैं। और इसके बारे में मैं तो ज़्यादा नहीं बोल सकता हूँ। हमें वहाँ पधारे हुए जो सहस्त्र बुद्धि जी यहाँ, वो आपको ज़्यादा उसके बारे में बताएंगे, क्योंकि आज का सब्जेक्ट ही वही है कि आइडिया ऑफ एंटरप्रेन्योर सोशल एंड कल्चरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं फिर से आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूँ। आभार। जय हिंद, जय जय गणेश। आपके शाब्दिक आवकार के बाद अभी हम हमारे अतिथि डॉक्टर विनय सहस्त्रबुद्धे जी का सम्मान और उनको बुके से हम स्वागत करेंगे। प्रमुख श्री विजय भाई मेवावाला, चार्टर्ड अकाउंटेंट श्री प्रदीप कुमार सिंघी जी, जीतो के एडवाइजर, और श्री रोहित भाई तिवारी और मितेश भाई गांधी और निखिल भाई मद्रासी और हमारे डायनेमिक ऑनररी ट्रेजरर नीरव मांडेवाला, सभी से विनती है कि आप सब साथ में मिलके हमारे आज के अतिथि का हम स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं। Okay, thank you. हमारे साथ नीरव शाह जी जो वाइस चेयरमैन रह चुके हैं सूरत महानगर पालिका के, उनकी डेप्यूटी मेयर रह चुके हैं, उनकी उपस्थिति की हम नोट लेते हैं। नीरव भाई साहब, एजेंडा में आगे बढ़ते हुए अब मैं इनवाइट करूंगा हमारे डायनेमिक ऑनररी सेक्रेटरी, जिन्हें मैं कदावर मेहता कहता हूं, वो नीरव मांडेवाला जी आज के हमारे अतिथि का हमें परिचय करवाएंगे। Honorary dais and respected friends present in this auditorium, it's my privilege to introduce a distinguished personality whose contributions span across the realms of social work, education, politics, and cultural enrichment. Dr. Vinay Sahasrabudhe, whose work has left an inedible mark on India's socio-political landscape. Dr. Vinay Sahasrabudhe is a nationalist social worker at heart and a researcher cum student of political science. He was a member of Parliament Rajya Sabha between 2016 to 2022. From 2018 until 2024, he headed the Indian Council for Cultural Relations as its president. From 2020 to 2022, he was also the chairman of the Parliamentary Standing Committee on Education, Women, Children and Youth and Sports. Currently, he serves as the chairman of the Cultural Policy Implementation Committee and the Finance Committee of the Prime Minister's Museum and Library, New Delhi. A postgraduate in English literature, Dr. Sahasrabudhe later earned his PhD from the University of Mumbai. After shouldering national level responsibilities, he had brief stints in journalism and corporate communications. In 1988, he joined Rambhau Malgi Prabodhini RMP, a unique academy established to build the capacities of elected representatives and politicians, as its founder director. Since 2016, he has been the vice chairman of Prabodhini. In 2014, he became the National Vice President of Bharatiya Janata Party, serving for 2 consecutive terms until 2020.
Currently, he is a member of National Executive of the BJP and holds charge of the Thane Lok Sabha constituency. Dr. Sahasrabudhe has authored or edited over half a dozen books in Marathi and English, some of which have received prestigious awards. His recent work, The Art of Implementation, includes chapters of stalwart like Srimati Nirmala Sitaramanji and Sanjeev Sanyalji. Dr. Sahasrabudhe's journey is a true inspiring, reflecting his commitment to nation building, cultural preservation, and capacity building for leaders. Let us warm welcome Dr. Vinay Sahasrabudhe. Thank you. आदरणीय डॉक्टर विनय सहस्रबुद्धे जी अपने प्रेरणा पीयूष समय दे उससे पहले यहाँ ऑडिटोरियम में उपस्थित हमारे सबकी तरफ से, बिजनेस फ्रेटर्निटी ऑफ साउथ गुजरात की तरफ से, हमारे प्रमुख श्री और हमारे चीतों के एडवाइजर सब साथ में मिलके, पूरा मंच साथ में मिलके आपका हम स्वागत करेंगे। खेस के साथ हम स्वागत करना चाहेंगे। अब आपके विराट व्यक्तित्व को हम विनती करेंगे कि आप प्रेरणा पीयूष में दें। साउथ गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष श्रीमान विजय मेवावाला जी, साथ ही जो व्यक्तिगत रूप में मुझे मिलकर निमंत्रण देने के लिए आए थे, श्री नीरव मांडलेवाला जी, मृणाल शुक्ला जी, रमेश मद्रासिया जी, निखिल मद्रासी जी, मीतेश गांधी जी, प्रदीप कुमार सिंघी जी, रोहित तिवारी जी, बाकी मंचासीन सभी मान्यवर, और इतनी देरी होने के बावजूद भी बड़े धैर्य से यहाँ पर बैठे हुए आप सभी युवा एंटरप्रेन्योर्स, उद्यमी भाई और बहनों, हमने सुना था बहुत बचपन से कि काशीनो मरण अने सूरत नो जमण। तो जमण का तो मैंने पहले भी अनुभव लिया था, मगर सूरत में भाषण ये मेरे लिए पहली बार है। और मैं मानता हूं कि जो भी आयोजकों की अपेक्षा होगी, उम्मीदें होगी, उस पर मैं खरा उतरने की कोशिश करूंगा, कुछ विचार आपके साथ साझा करते हुए। मुझे अच्छा लगा कि यहाँ पर सारी कार्यवाही हिंदी में या गुजराती में हो रही है। सामान्यतः चैम्बर ऑफ कॉमर्स वगैरह संगठन थोड़े से केवल ब्रिटिश भाषा में ही व्यवहार करने के लिए परिचित होते हैं। आई डोंट हैव एनी क्वारल विथ इंग्लिश, इंग्लिश भी भारतीय ही भाषा मानी जानी चाहिए, इतने लोग अंग्रेजी बोलते हैं, कोई दुश्मनी तो है नहीं, मगर जैसे अपनी माता है, मातृभूमि है, वैसे ही मातृभाषा है। और अभी जो नई शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है, उसके तहत ये कोई बहुत लंबे समय की बात नहीं है कि हम हमारा मेडिकल और इंजीनियरिंग एजुकेशन भी गुजराती में ले पाएंगे। कई लोग बड़े एप्रीहेंसिव होते हैं कि ये कैसे संभव होगा, गुजराती में इतने शब्द है क्या, मराठी में इसके प्रतिशब्द है क्या। मगर जब फ्रेंच व्यक्ति फ्रेंच में मेडिसिन पढ़ सकता है, रशियन व्यक्ति रशियन में इंजीनियरिंग पढ़ सकता है, तो गुजरात का, महाराष्ट्र का, तमिलनाडु का व्यक्ति अपनी भाषा में क्यों नहीं पढ़ पाएगा। तो मैं मानता हूं कि हमने बड़े आत्मविश्वास से इस परिवर्तन की ओर भी देखना चाहिए। और ये विषय मैंने इसलिए भी छेड़ा क्योंकि देश में जो भी परिवर्तन चलता है उसमें उद्यमी जगत की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। एक समय था कि जो सोशलिस्टिक हैंगओवर हमारे देश के राजनेताओं के ऊपर छाया हुआ था, तो पैसा कमाना उतनी सम्मानजनक दृष्टि से नहीं देखा जाता। मगर आज वातावरण बदला है, विशेष रूप में विगत 10-15 सालों से, कि वेल्थ क्रिएशन को एक सम्मान का स्थान मिला है। और इसलिए
वेल्थ क्रिएशन को सम्मान मिलने के कारण अधिक से अधिक लोग आज एंटरप्रेन्योरशिप के दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। इसके पहले स्वाधीनता के बाद अभी 75 साल हुए, मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा दशक होगा जहां इतने बड़ी मात्रा में स्टार्टअप्स का रजिस्ट्रेशन हुआ हो। तो एक स्टार्टअप कल्चर हमारे देश में विकसित हो रहा है और उसमें आप जैसे लोगों की बड़ी भूमिका रही है, क्योंकि जब एक व्यक्ति स्टार्टअप की दिशा में बढ़ता है तो 10 लोगों को प्रेरणा मिलती है। वो भी कर सकता है तो मैं भी क्यों न कर सकूं, इस तरीके का भाव निर्माण होता है, जो बड़ी अच्छी बात है। अगर मैं एक छात्र के रूप में इन सारे विषयों की तरफ देखूं तो मुझे 3 बातें ध्यान में आती है। पहली बात यह है कि हम एक आकांक्षावान भारत में हैं। वी आर इन एन एस्पिरेशनल इंडिया। वी आर नॉट satisfied with just saying that we are a developing country. Our Prime Minister has very eloquently explained us and told us that let us dream about विकसित भारत। बस हो गया विकसनशील कहना। Now our dream, our aspiration, our goal, our objective has to be a developed India, which is विकसित भारत। लोगों ने मेरा भारत महान कहा और किसी ने कुछ नारे दिए, मगर विकसित भारत का सपना पूरे देश के विशेष रूप में युवाओं के सम्मुख पूरी ताकत से रखना, मैं मानता हूं अभी के सरकार के कार्यकाल में ही हुआ है। दूसरी बात यह है कि बदले हुए परिवेश में आज का युवा, और जब मैं युवा कहता हूं तो उसमें युवतियां भी है जिनकी अपनी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है, ये सारे लोग एक इंडिपेंडेंट थिंकिंग के लिए जाने जाते हैं। लेट मी शेयर विथ यू एन एक्सपीरियंस ऑफ माइन व्हेन आई वाज कैंपेनिंग फॉर द 2014 इलेक्शंस। मुंबई में ऐसे किसी चुनाव के अभियान में मैं था, सामने युवा वर्ग था, तो जो भी बातें होनी थी वो तो हो गई। कार्यक्रम जैसे ही समाप्त हुआ, एक युवा मेरे सामने आया, कहा कि सर आई हैव अ क्वेश्चन। मैंने कहा पूछिए। तो बोले डू यू नो व्हाट आवर जनरेशन वांट्स। अभी एकदम ऐसा कोई ब्लंटली सवाल पूछेगा तो थोड़ा विचलित हो जाते। फिर भी मैंने कहा परहैप्स आई नो, क्योंकि माय चाइल्ड इज ऑलमोस्ट ऑफ योर एज, बट प्लीज गाइड मी। आप मुझे कृपया मार्गदर्शन करिए कि आपकी पीढ़ी क्या चाहती है। तो उसने कहा, उसकी भाषा में बोल रहा हूं, उसने कहा कि सिंपल है सर, हमारे फंडास बड़े क्लियर है। तो मैंने कहा क्या है। तो बोले बहुत सिंपल है, वी वांट 5 4 3 2 1। मैं समझा नहीं। तो मैंने कहा सिंपल है सर, हमें चाहिए 5 फिगर सैलरी, 4 व्हीलर, 3 बेडरूम हॉल किचन, 2 किड्स एंड 1 वाइफ। अभी 1 वाइफ 1 हस्बैंड बोले। ये बदला हुआ भारत। कोई कहेगा कि कितना मटेरियलिस्टिक थिंकिंग है, कितनी संकीर्ण सोच है। मैं कहूंगा कि कितनी स्पष्ट सोच है। There is no hiding of intentions. He wants to earn money. Period. कोई दिक्कत नहीं। देश का वातावरण ऐसा है, विश्व का वायुमंडल बदला हुआ है, हम एक स्पर्धात्मक विश्व में है, तो ऊंची आकांक्षा रखना, 3 बेडरूम हॉल का सपना देखना, 4 व्हीलर की बात करना, नॉट ए स्मॉल थिंग। मैं सोच रहा था कि जब मैं इसके आयु का था तब हमने तो कोई ऐसा सोचा भी नहीं था। एंड ही इज नाउ टॉकिंग 20-something%, 2 kids and 1 wife. Look at it. तो ये बदला हुआ भारत है जिसका एहसास हम सबको होना चाहिए। और ये बात मैं 2014 की कर रहा था, तब तो केवल जेन जी थी, अभी तो जेन अल्फा आ गई, और अभी 25 शुरू हुआ है तो जेन बीटा का भी समय आ गया है। तो पीढ़ी दर पीढ़ी परिवर्तन हो रहा है और लोग अब कॉम्प्लेसेंसी, बस हुआ भाई, इस मुद्रा में नहीं। उनकी आकांक्षाएं उच्च है, उच्चतर है, और ये हमारे देश की तरक्की के लिए, प्रगति के लिए एक बहुत अनुकूल वायुमंडल, वातावरण हम देख रहे हैं। तीसरा एक विषय मुझे लगता है बदले हुए सामाजिक वातावरण में कि पीपल आर नॉट एवर्स टू टेक रिस्क्स।
धोखा तो होता ही है, रिस्क तो लेनी पड़ती है। बिजनेस की जगत के आप सारे लोगों को मैंने क्या बोलना है रिस्क लेने का, पग पग पर कुछ ना कुछ रिस्क रहती है, मगर रिस्क ले सकते हैं हम, लोन निकाल सकते हैं हम। एक जमाना था कि लोन लेना, इसके लिए भी एक मानसिकता बनानी पड़ती थी। अभी तो यूं लोन ले लेते हैं लोग, और एक आत्मविश्वास के साथ कि हम चुकाएंगे कर्जे को। ये भी बदला हुआ परिवेश, और सेफ प्ले नहीं कोई चाहे, मतलब आसान तरीके से संपदा निर्माण करे, ये स्थिति नहीं है। नए क्षेत्रों में जाएंगे, नई दिशाओं को पहचानेंगे, नई तकनीक को अपनाएंगे, ये है। और इसलिए मैं मानता हूं कि विगत 10 सालों में एक बहुत अनुकूल वायुमंडल बन रहा है। मगर इसके साथ साथ एज इट हैपेंस देयर आर सम प्लसेस, देयर आर सम माइनसेस ऑल्सो। माइनसेस इन द सेंस, जैसे स्वोट एनालिसिस हम करते हैं तो होता ही है, दोनों चीजों का स्ट्रेंथ है तो कुछ वीकनेस भी है। 2 चीजें मुझे ध्यान में आती है एक छात्र के नाते अगर मैं कहूं। एक बात यह है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को कोट करते समय ये कहा, बाबा साहब ने अपने अनुयायियों को कहा था, जो सही था, और वो सबके लिए सही है, केवल किसी एक समाज के लिए नहीं। उन्होंने कहा कि डोंट बी अ जॉब सीकर, बी ए जॉब गिवर। बड़ी अच्छी बात है, मगर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है, जो भी स्टार्टअप की दुनिया के कुछ उदाहरण मैं देखता हूं, कि फ्रॉम डे वन यू कैन नॉट बिकम ए जॉब गिवर, फॉर ए वाइल यू हैव टू बी ए जॉब सीकर एज वेल। जो अच्छी नौकरी कर सकता है वही अच्छी नौकरियां निर्माण कर सकता है और दे सकता है, मगर इसका एहसास नहीं होता। अभी यहाँ एग्जीबिशन लगा है, मुझे पूरी उम्मीद है, मैं पूरा आश्वस्त हूं कि यहाँ पर 20 समथिंग छात्रों का भी बड़ा तांता लगा होगा, उनको भी, क्योंकि हर किसी को ग्रेजुएशन के बाद, MBA करने के बाद, इंजीनियरिंग के बाद तुरंत अपना कुछ न कुछ करना है, विच इज नॉट बैड पर से, मगर कुछ अनुभव संपदा अगर आपके पास नहीं हो तो शायद फेलियर्स की संख्या बढ़ती जाएगी। और मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि जिस संस्थान के साथ मैं जुड़ा हूं, रामभाऊ महाराजी प्रबोधिनी, हम एक अटल इंक्यूबेशन सेंटर चलाते आए, और विगत 6 सालों से नीति आयोग के द्वारा बहुत सराहा गया है हमारा प्रयास। लगभग 90 स्टार्टअप्स को हमने मतलब कुल मिलाकर उनके सृजन की प्रक्रिया में, इंक्यूबेशन की प्रक्रिया में हमने काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मगर कई बार मेरे मन में आता है, एंड मे बी द साउथ गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री कैन एज वेल थिंक अबाउट दिस, कि आज मैं नीति आयोग में भी चर्चा की, IIT मुंबई, IIM अहमदाबाद, कई लोगों के साथ इनफॉर्मली मेरी बात हुई। मुझे अब तक ऐसा कोई रिसर्च ध्यान में नहीं आया कि अगर 100 स्टार्टअप में से 52 सफल होते हैं और 48 मान लीजिए विफल होते हैं, तो ये 48 विफल क्यों होते हैं, इसके कारणों की चिकित्सा होना बहुत जरूरी है। वेदर द कंसेप्ट इटसेल्फ वाज वीक, not so powerful, whether the marketing planning was kind of flawed, or whether the continuous supply of capital was missing, क्या हुआ, क्या क्यों विफल हुआ। जब तक हम इसके बारे में आकलन नहीं बनाएंगे, तब तक हम उपाय योजना कहाँ करनी चाहिए इसके बारे में दिशा स्पष्ट रूप में अपना नहीं पाए। और इसलिए ये होना बहुत जरूरी है कि विफलता क्यों होती है। सफलता का तो सब गुणगान गाते हैं, गाना भी चाहिए, मगर जो लोग विफल होते हैं उनकी विफलता के कारणों की तलाश करना मुझे लगता है कि बहुत आवश्यक है। इसी दिशा में मैं एक और विषय को, जिसको बहुत स्पष्टता से हम चर्चा में नहीं लाते, मगर मैं लाना चाहता हूं, क्योंकि स्टार्टअप चलाना, कोई भी उद्यम चलाना is a very demanding kind of a job. It practically sucks you. आपकी बुद्धि, आपकी प्रतिभा, आपके परिश्रम, आपकी क्षमता, आपका समय,
आपके रिसोर्सेस पूरा आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है। और कई बार बाकी चीजें जो होती है, फैमिली लाइफ है, सोशल लाइफ है, इनके लिए हम समय नहीं निकाल पाते और इसके कारण कुछ तनाव की परिस्थिति भी निर्माण होती दिखाई देती है कई जगह। मुझे लगता है कि इसके बारे में भी थोड़ा गंभीरता से, थोड़ा रुक कर हमें सोचना जरूरी है, क्योंकि जिस घर के लिए, जिस परिवार के लिए हम मेहनत करते हैं, उस परिवार का वायुमंडल ठीक रखना ये भी तो हमारा ही काम है, क्योंकि हम अभी परिवार के नायक की भूमिका में हैं। और यहाँ पर काफी बहनें भी बैठी हुई है, तो बहनों को अच्छा लगे इसलिए मैं नहीं कह रहा हूं, मगर वाकई में ऐसी स्थिति है कि ये जो जेंडर नाम का विषय है, जेंडर इक्वालिटी, जेंडर जस्टिस, ये अब हमारे दरवाजे की चौखट के अंदर आया है और इसका हमारे देश के सभी पुरुष वर्ग को आकलन होना बहुत आवश्यक है। आचार्य दादा धर्माधिकारी नाम से एक बहुत बड़े सर्वोदयी विचारक थे, नेता थे। उन्होंने एक छोटी पुस्तिका लिखी थी, उसमें उन्होंने इस विषय को स्पर्श किया आज से लगभग 50 साल पहले। उन्होंने ये लिखा है कि बदलते हुए जमाने में एक ऐसा कामों का सिलसिला था, ऐसे कार्य थे, ऐसी ड्यूटीज थी जो ट्रेडिशनली द ड्यूटीज ऑफ द मेन ऐसा कहा जाता था। ये पुरुषों की कर्तव्य, दायित्व है। पैसा कमाना, घर गृहस्थी की रचना करना, घर खरीदना या सुरक्षा के लिए कुछ इंतजाम करना वगैरह वगैरह वगैरह। और कुछ काम ऐसे थे जो केवल महिलाओं के माने जाते थे। बच्चों का लालन पालन है, बुजुर्गों की सेवा है, रसोई का पूरा इंतजाम है, सारी चीज। दादा धर्माधिकारी लिखते हैं कि बदले हुए वातावरण में आज ऐसा एक भी क्षेत्र रहा नहीं कि जहां महिलाएं नहीं है। महिलाएं विमान चलाती है, कंपनियों की डायरेक्टर बनती है, माइनिंग और केमिकल टेक्नोलॉजी और पता नहीं क्या क्या इन विषयों में अध्ययन करती है, देश का नेतृत्व करती है, यूनाइटेड नेशंस में जाती है, संसद में जाती है। तो पुरुषों के माने जाने वाले सारे क्षेत्रों में अगर महिलाएं आई है, तो समाज में अगर संतुलन रखना है तो अब पुरुषों को चाहिए कि वो महिलाओं के माने जाने वाले क्षेत्र में अपना योगदान देने की मानसिकता बनाए। मैं मानता हूं कि ये हमारी परिवार व्यवस्था को अक्षुण्ण रखने के लिए ये बहुत बुनियादी सोच हमारे अंदर निर्माण होनी चाहिए। इसको एक्सट्रीम सोचने की जरूरत नहीं है। मैंने एक बार नैपी बदली, अभी दूसरी बार आपने बदल दी है, दैट इज नॉट दी मैथमेटिक्स। मगर जो काम करने के लिए हमें संकोच होता था, चाहे बर्तन का विषय है, चाहे और कुछ विषय है, चाहे मार्केटिंग की बात है, मैं मानता हूं कि आज का युवा इस वातावरण में धीरे धीरे आ रहा है कि देयर इज समथिंग लाइक जेंडर जस्टिस एंड ही और शी बोथ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, विच इज अगेन अ गुड थिंग। ऑल्दो ये परिवर्तन और अधिक गति से होने की आवश्यकता है। वो जितना गति से होगा उतनी हमारी परिवार व्यवस्था और मजबूत हो जाएगा। 2-3 सुझाव है मेरे उद्यमी जगत के लिए। एक ये है कि आप जो काम करते हैं, वैसे भी सारे कामों के बारे में, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के काम को मैं अपवाद नहीं मानता। मतलब जो भी, मैं अभी गाड़ी में आते आते हमारे भाई से सुन रहा था, नीरव भाई से, कि क्या साउथ गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स करता है और कितने सालों से करता है, एंड द रिमार्केबल पार्टिसिपेशन ऑफ यूथ। मतलब ऑल आर यूथ दैट वे, सम ऑफ अस आर फिजिकली यंग एंड अदर्स आर साइकोलॉजिकली एंड इमोशनली यंग, सो आई एम नॉट डिस्क्रिमिनेटिंग, बट स्टिल युवाओं की इतनी भागीदारी और इतना सहभाग और इतनी ऊर्जा से ये साउथ गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स चलाना, ये कोई आसान बात नहीं है। तो ये जो प्रक्रियाएं चलती है, अभी जिस पद्धति से आपने विभिन्न संस्थाएं खोली है चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अंदर, इसका भी एक अच्छा सा डॉक्यूमेंटेशन हो, क्योंकि ये नॉलेज क्रिएशन है। वी आर नॉट जस्ट क्रिएटिंग वेल्थ, बट वी आर क्रिएटिंग सम नॉलेज प्रोडक्ट्स एज वेल। तो प्रबंधन विज्ञान, मैनेजमेंट साइंस की दृष्टि से भी इसका कुछ न कुछ अध्ययन हो, कुछ डॉक्यूमेंटेशन हो, कुछ
मतलब मैनेजमेंट साइंस में टीम बिल्डिंग पढ़ाया जाता है, बट एक्चुअली हाउ टीम्स आर बिल्ड नोबडी नोज। क्योंकि टीम बिल्डिंग में टीम का जो नायक है, जिसको हमारे पुराणों में, गीता में कहा गया है कर्ता, और कर्ता के बारे में भगवत गीता कहती है कि अधिष्ठानम और कर्ता, मतलब अधिष्ठान और कर्ता, इनका एक बहुत गहरा संबंध है। उसको कोई एक फाउंडेशन चाहिए। अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विदम विविधश्च पृथक चेष्टा दैव चैवात्र पंचमम। पहले अधिष्ठान यानी द सेंस ऑफ पर्पस, फिर कर्ता दैट इज द नायक ऑफ द टीम, फिर विविधश्च और पृथक चेष्टा, मतलब तरह तरह के कार्यक्रम और तरह तरह के प्रयास, और अंत में आता है दैव विच इज डेस्टिनी, बट दैट इज लास्ट। तो ये सारा मैं मानता हूं कि एक नॉलेज क्रिएशन है। उस दृष्टि से भी कुछ अगर होगा तो अन्य चैम्बर ऑफ कॉमर्स को ये उपयुक्त होगा। दूसरा, मुझे ऐसा लगता है कि एक जॉब क्रिएशन की दृष्टि से कम्युनिटी कॉलेज मॉडल की चर्चा हमारे देश में लगभग 20 सालों पहले काफी हुआ करती थी। आज मैं उसकी चर्चा इतनी दिखता नहीं हूं, बट परहैप्स दैट मॉडल इज वर्थ पॉन्डरिंग ओवर। वो मॉडल क्या है? आज ये ऐसा हो रहा है, अभी हम भी एक संस्था के साथ जुड़े हैं, आप लोग तो बहुत सारे उद्यम चलाते हैं, इतनी हम बेरोजगारी की चर्चा कर सुनते हैं, आंकड़े आते हैं, नीति आयोग, फलाना रिपोर्ट, ये वो, बावजूद इसके बेरोजगारी अपनी जगह है और अच्छे लोग मिलते नहीं। ये कंप्लेंट लगभग हम सभी की है। हमें अच्छे लोग ही मिलते हैं, काम करने वाले, प्रोडक्टिव, रिजल्ट ओरिएंटेड काम करने वाले, निष्ठा से काम करने वाले, प्रामाणिकता से काम करने वाले, ऐसे लोग मिल नहीं रहे। तो इसी समस्या पर उपाय के रूप में ये कम्युनिटी कॉलेज की सिस्टम एक प्रयोग के रूप में, विशेष रूप में चेन्नई में उस पर अमल किया गया था। ये सिस्टम ऐसी है कि जैसे सूरत में मान लीजिए 100 इंडस्ट्रीज है, ज्यादा भी होगी, तो इन इंडस्ट्रीज की मैन पावर रिक्वायरमेंट का एक सर्वेक्षण किया जाए। दैट विल हेल्प अस टू अंडरस्टैंड कि कितने टर्नर, फिटर या आईटी स्पेशलिस्ट या सॉफ्टवेयर वाले या जो भी है चाहिए। अगर वो संख्या 1000 होती है मान लीजिए, तो 1000 युवाओं की एक प्रक्रिया के माध्यम से हमने भर्ती करनी चाहिए और उनको 1 साल ट्रेनिंग देना चाहिए, जिसमें पहले 3 महीने जो बेसिक इंग्लिश का ट्रेनिंग है, क्योंकि इंग्लिश से कोई छुटकारा नहीं है, तो वो उनको दिया जाए। कन्वर्सेशनल इंग्लिश, ड्राफ्टिंग, हाउ टू राइट ए गुड ईमेल। दूसरे 3 महीने उनको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, इसका एक फंडामेंटल ट्रेनिंग देना चाहिए। फिर 3 महीने, मतलब तीसरा जो उसका कोहोर्ट आता है, तो उसमें उनको जो कुल मिलाकर मैनेजमेंट साइंस है उसका एक ट्रेनिंग देना चाहिए, और अंतिम 3 महीने जो जॉब उनको करना है उसके बारे में ट्रेनिंग देना चाहिए। तो 1 साल अगर ट्रेंड एक व्यक्ति आपके साथ रहता है और बाद में 3 या 4 साल का बॉन्ड लेकर उसको अगर आप दायित्व देते हैं, तो चांसेस आर दैट यू विल गेट ए फिनिश्ड प्रोडक्ट हु इज मोर केपेबल ऑफ डिलीवरिंग व्हाटएवर यू डिजायर। ऐसी प्रक्रिया अगर हम करेंगे तो मैं मानता हूं कि आज जो प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट वाकई में प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयबिलिटी हो गया। तो अनएम्प्लॉयबिलिटी पर इतने सारे स्किल डेवलपमेंट वगैरह वगैरह की चर्चा हो रही है। ऐसा नहीं कि कुछ हो नहीं रहा, स्किल की ट्रेनिंग भी दी जा रही है। इन अ वे दिस इज स्किल ट्रेनिंग। और अभी जो एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स की बात आई है राष्ट्रीय शिक्षा नीति में, उसके अंदर इसके क्रेडिट्स भी बनाए जा सकते। नथिंग डिफिकल्ट अबाउट इट। मे बी यहाँ की कोई यूनिवर्सिटी उसको हाथ में ले तो उस पद्धति से भी किया जा सकता। मेरे कहने का तात्पर्य है कि कुछ न कुछ उपाय ढूंढने चाहिए, क्योंकि इतने विशाल जनसमुदाय के लिए ये स्थिति कि एक ओर बेरोजगारी है और दूसरी ओर अच्छे लोग नहीं मिल रहे, ये कोई स्वस्थ समाज का चिन्ह है, ऐसा नहीं है। तो इसलिए मैं मानता हूं कि इस तरीके के कुछ प्रयोग अगर हम करेंगे तो शायद बेरोजगारी की समस्या पर हम कुछ उपाय ढूंढने की क्षमता में रहेंगे। इनोवेशन की बहुत चर्चा होती है
और होनी भी चाहिए। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे ग्रामीण अंचलों में अभी ये आप लोगों का भी संबंध आया होगा, ये जो हैकेथॉन के कार्यक्रम होते हैं विभिन्न यूनिवर्सिटीज़ में, तो कैसे विभिन्न समस्याओं पर टेक्नोलॉजी के माध्यम से आसान तरीके से कुछ न कुछ उपाय ढूंढे जाते हैं। तो ऐसे ही हैकाथॉन में हमारे महाराष्ट्र में एक कार्यक्रम हुआ, तो एक छात्र को पुरस्कार मिला, पहला फर्स्ट प्राइज। उसने जो शोध किया था वो इस प्रकार का था कि रूरल एरियाज में, विशेष रूप में ग्राम शहरों में भी ये समस्या है कि महिलाओं के खून में जो हीमोग्लोबिन का परसेंटेज है वो जितना होना चाहिए उतना नहीं है। तो हीमोग्लोबिन अगर कम होता है तो आपकी बॉडी विभिन्न जो बीमारियां हैं उनके शिकार बनने की संभावना बढ़ती है। तो इसलिए हीमोग्लोबिन की टेस्ट आमतौर पर साल में 1-2 बार करनी चाहिए। मगर वैसे ही कोई भी व्यक्ति, पुरुष हो स्त्री हो, खून निकाल कर उसको परीक्षा में डालना की जो प्रक्रिया है उससे थोड़ा सा हिचकिचाता है। और ग्रामीण अंचलों में महिलाएं और अधिक थोड़ी संकोच करती है कि वो नहीं कहे मैं तो अच्छी हूँ, मुझे क्या हुआ है, मैं तो बढ़िया हूँ, ऐसा कहती है। मगर ऊपर से बढ़िया दिखने वाले व्यक्ति को भी हीमोग्लोबिन के बारे में कुछ पता नहीं होता। सो दिस यंग पर्सन, एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट, thought of it and he evolved a mechanism which is a kind of a tape which you have to wear around your finger. तो अपने उंगली से एक ऐसा टेप अगर लगाएंगे जिसको सेंसर बिठाए है और वो चिपक कर बैठ जाता है, और सेंसर के कारण बगैर प्रिक किए आपको जो परसेंटेज है हीमोग्लोबिन का वो पता चलता है। तो उसको अवार्ड मिला। तो अवार्ड मिला तो उसका कार्यक्रम हुआ पुणे शहर में। हमारे यहाँ थर्मैक्स कंपनी की जो चेयरमैन श्रीमती अनु आगा राज्यसभा में भी थी, वो मुख्य अतिथि थी। तो अनु आगा जी का चित्र जिन्होंने देखा होगा आपको पता होगा कि शी इज ए वेरी फ्रेल लेडी। तो जब लड़के को बुलाया गया तो लड़के ने कहा कि मैडम, बिफोर आई टेक द अवार्ड गिव मी योर फिंगर। तो मैडम ने फिंगर दिए, तो उसने वो टेप उसके पूरा कवर कर दिया और कहा कि इट इज 11.5, टेक केयर, इट हैज टू बी 13 समथिंग। तो ये प्रतिभा है। मैंने उदाहरण इसलिए दिया कि ग्रामीण अंचल का अहमदनगर जैसे एक क्षेत्र जिसको अभी हम अहिल्यानगर कहते हैं, देहात से आया हुआ व्यक्ति जब अपना दिमाग लगाता है तो इनोवेटिवली किस पद्धति से कुछ शोध जो जरूरत के अनुसार है, विच इज अ नीड बेस्ड काइंड ऑफ ए रिसर्च, उसको कैसे एक प्रोडक्ट में तब्दील कर सकता है, इसका एक उदाहरण है। कहने का तात्पर्य है कि हमारे देश में युवाओं के अंदर इस तरीके की प्रतिभा बहुत प्रचुर मात्रा में। व्हाट वी हैव टू डू इज टू टैप दैट टैलेंट और थोड़ा सा उनको मेंटरिंग करने की जरूरत है। और आज मेंटरशिप इज परहैप्स a commodity which is so very in acute short supply everywhere. मेंटर ही मिलते हैं, मतलब लड़के घूम रहे हैं, कोई मुझे मेंटर बनता है क्या मेरा, और उसके सामने कोई आ नहीं रहा कि मेंटरिंग, क्योंकि मेंटर ये केवल मित्र नहीं होता, मित्र तो होता ही है मगर और भी कुछ होता है। और आज हमारी मित्रता की व्याख्या फेसबुक फ्रेंडशिप तक सीमित रह गई, इसलिए फ्रेंड बहुत बड़ी मात्रा में, मित्र बहुत कम। हमारे एक शिक्षक थे, वो मित्र की व्याख्या करते समय मुंबई के एक होटल का उदाहरण देते थे। आप में से कई लोग मुंबई में गए हैं और माटुंगा स्टेशन सेंट्रल रेलवे पर, वहां पर एक उड़पी श्री कृष्ण बोर्डिंग हाउस है। मेनी ऑफ यू माइट हैव टेस्टेड द साउथ इंडियन डिशेस ओवर देयर। तो वहां पर पुराने जमाने में, ये 150 साल का होटल है, स्वाधीनता संग्राम के पूरे चित्र भी वहां पर लगे हुए हैं। तो उनका जो काउंटर है जहां पर हम बिल वगैरह देते हैं, उसके पीछे एक बोर्ड पुराने जमाने में लगा था, अभी नहीं है। उस पर लिखा था कि इफ यू लाइक आवर सर्विसेज टेल अदर्स, इफ यू डोंट टेल अस। ये मित्रता है। मित्र ऐसा चाहिए कि जो आपकी गलतियों के बारे में आपको ठीक तरीके से बता पाएगा। केवल आपकी बुरी बुरी प्रशंसा में मित्रता नहीं है।
तो ऐसे मित्र मिलना, ऐसे मेंटर मिलना, मैं मानता हूं कि बड़ा कठिन होता जा रहा है। ऐसी स्थिति में भी आई वुड सजेस्ट कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स कुछ कर सकता है। शायद नीरव जी आए थे तब हमने थोड़ी सी बात छेड़ी थी उनके साथ कि आज देश में जो मुद्रा लोन है या बाकी भी तरह तरह के उद्यमियों के लिए कर्ज वितरण के कई प्रयास सरकार कर रही है, और अच्छी बात है कि मुद्रा में विशेष रूप में महिलाओं को जो ऋण दिया जा रहा है उसमें एनपीए का प्रमाण बहुत कम है, मगर जो पुरुष है उनका प्रमाण अगर कम होना है तो आई वुड सजेस्ट दैट दी institutions, organizations like Chamber of Commerce and Industry perhaps would do well to coordinate with the local branches, और जिन जिन को मुद्रा दिया है उनको हम मुद्रा के साथ एक मित्र भी दे सकते हैं जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स का है, अनुभवी है और डिसिप्लिन के अनुसार होगा। अगर वो टेक्सटाइल में काम कर रहा है तो हमारा कोई टेक्सटाइल का बंदा जिसने लगभग टेक्सटाइल की पीएचडी ही पाई है अनुभव के आधार पर, ऐसा कोई उसको जरूर मेंटर कर सकता है। कोई लोहे में काम कर रहा है, मेटल में काम कर रहा है, कोई आभूषण ऑर्नामेंट्स में काम कर रहा है, तो मैं मानता हूं कि वी कैन डेफिनेटली वर्क इन दैट डायरेक्शन। ऐसा होता है तो मुद्रा लोन की सरकार की योजना सफल कराने में हमारा भी कुछ एक सार्थक योगदान हो पाएगा। इन अ वे जो सोशियो कल्चरल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात हम कर रहे हैं उसका एक प्रमाण हो सकता है। इट्स अ सजेशन। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमारे देश में हमारी प्राचीन संस्कृति, कलाएं, इनमें काम करने वाले लोग भी अभी बहुत अच्छे तरीके से टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहे हैं। मैं 2 उदाहरण देना चाहता हूं। कोरोना के काल में हमारे जो लोक कला, फोक आर्ट करने वाले लोग हैं, उनके ऊपर तो बहुत विपरीत स्थिति आई थी क्योंकि कोई परफॉर्म ही नहीं करने का, कैसे करें। तो हमारे यहाँ भरतनाट्यम, कथक वगैरह तो है, मगर राजस्थान में एक नृत्य बड़ा मशहूर है, लोक नृत्य, उसको बोलते हैं कालबेलिया। और ये कालबेलिया यानी समझने के लिए आसान हो इसलिए बोल रहा हूं कि ये नागिन फिल्म का जो डांस है वो कालबेलिया है। तो एक गुलाबो बाई नाम की कलाकार है जिनको प्रधानमंत्री जी ने पीपल्स पद्म भी दिया है। तो उन्होंने पूरे कोरोना काल में अपने मित्रों के माध्यम से सीख लिया कैसे किया जाता है और इंटरनेट पर वो क्लासेस लेना शुरू किया। और वो मुझे महिला बता रही थी कि मेरे पास लगभग 350 छात्र रजिस्टर्ड थे और उसमें से 200 से भी अधिक छात्र फ्रांस के थे। तो मैंने कहा आप फिर कैसे करती थी, उनसे कुछ फीस भी लेती थी? तो बड़ा सीना तान कर मुझे कह रही थी कि भाई साहब मैं गिनकर 1000 रुपया 1 घंटे का लेती थी और सब लोग मुझे देते थे। दैट इज न्यू। ये कर सकते हैं लोग। और हमारे देश में ऐसा विश्व को बताने लायक इतना है, बड़ी मात्रा में है। कई बार हमारी अवस्था वो कस्तूरी मृग जैसी होती है कि हमें ही पता नहीं कि हमारे पास क्या है। वी डोंट नो एंड वी डोंट नो दैट वी डोंट नो। तो ये जो है हमारे देश का जो भंडार है समृद्धि का, संस्कृति की समृद्धि का, उसको अगर हम टटोलेंगे तो ऐसे दर्जनों उदाहरण मिल जाते। हमारे यहाँ महाराष्ट्र में मीरज में, मतलब मीरज, उधर तंजावुर, वाराणसी और कोलकाता, ये 4 शहर ऐसे हैं जहां पर हमारे ट्रेडिशनल स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स बनते हैं। मतलब सितार है या तानपुरा है, क्योंकि ये तानपुरा बनाना, तानपुरा मशीन में बनता नहीं, तानपुरे के लिए कद्दू लगाना पड़ता है एक विशिष्ट पद्धति का, और वो सूखने के बाद उसका उपयोग तानपुरे के पूरे इंस्ट्रूमेंट में किया जाता है। इट्स अ वेरी इंट्रिकेट काइंड ऑफ अ प्रोसेस। तो ये तानपुरा बनाने वाले जो लोग हैं वो मुझे कह रहे थे कि अगर मीरज जैसे शहर में, नॉट ए बिग सिटी, मगर वहां पर अगर 100 तानपुरे बनते हैं 1 महीने में, तो 70 तानपुरे एक्सपोर्ट हो रहे हैं। और ये कहाँ जा रहे हैं? ये लंदन जा रहे हैं और न्यू जर्सी जा रहे हैं। तो एक्सपोर्ट है, मतलब लोगों को भारतीय कलाओं के बारे में, भारतीय जो भी सांस्कृतिक हमारी सारी विधाएं हैं उनके बारे में बहुत आकर्षण है। ऐसा नहीं कि लोग उसको चाहते नहीं। तो ये भी मैं मानता हूं कि एक ऐसा क्षेत्र है कला जगत का जुड़ा हुआ कि जिसके कारण हम विश्व में हमारी उद्यमिता को एक नए पद्धति से शायद प्रस्तुत कर सकते हैं, क्योंकि पीपल वांट इट।
योग और आयुर्वेद की भी यही बात हमने देखा कि किस पद्धति से योग का प्रचार हुआ अंतर्राष्ट्रीय योग दिन होने के बाद। मगर उसमें एक और बिंदु है जिसकी ओर मैं आपका ध्यान आकर्षण करना चाहूंगा। एंड इफ पॉसिबल मे बी people like you who are so very experienced and knowledgeable as well can guide these people who are our traditional artisans. अभी दो दिक्कतें क्या आती है आर्टिजान्स के बारे में। एक तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट हम लेते ही नहीं, हमने उपेक्षा की उसकी। अभी पता है आपको, योग ये तो भारतीय विज्ञान है, भारतीय शास्त्र है, मगर आज अमेरिका में योग के बारे में सर्टिफिकेशन करने वाली एजेंसी पूरे विश्व भर में मशहूर है। वो उनका सर्टिफिकेट लेते, भारत का नहीं लेते, क्योंकि वो पहले से गए उधर। और तरह तरह के नए नए उसको विकृत रूप में भी प्रस्तुत किया जा रहा है। देयर इज समथिंग कॉल्ड हॉट योग, देयर इज समथिंग कॉल्ड बियर योग। सच ए बियर, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट लिया नहीं। हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे भरतनाट्यम, कथक या हमारे सत्रीय नृत्य या कालबेलिया या गरबा, इनके भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स कहीं ना कहीं हमने सुरक्षित करने चाहिए। अगर हम ये नहीं करेंगे तो इसका भी भ्रष्ट रूप विश्व के बाजार में बेचने की मुद्रा से कुछ लोग काम करेंगे। तो मैं मानता हूं कि इसमें भी शायद आप जैसे लोग कुछ योगदान दे सकते हैं। आयुर्वेद की भी यही बात है। अभी जर्मनी जैसे देश में मैंने देखा कि आयुर्वेद हॉस्पिटल बहुत अच्छी मात्रा में चल रहा है, और जो यहाँ के आयुर्वेद हॉस्पिटल में नहीं, वो वहां मुझे बर्लिन में देखने को मिला कि वो म्यूजिक थेरेपी का उपयोग कर रहे हैं। और मुझे उन्होंने कहा कि आप अनुभव लीजिए, तो एक बेड पर सुलाया और नीचे उन्होंने तानपुरे के तार लगाए, उस पर वो सुर छेड़ते हैं तो आपको एक अलग तरीके के वाइब्रेशंस आते हैं। सो देयर आर नंबर ऑफ वेज एंड मीन्स बाय वे ऑफ विच वी कैन perhaps market our Indian traditional knowledge. Market शब्द थोड़ा आपको अटपटा लगेगा, बट इन राइट सेंस ऑफ इट, उसमें कुछ गलत नहीं है, क्योंकि हमारे पास ये ज्ञान है, वो ऑथेंटिक ज्ञान है, और वो उसकी ऑथेंटिसिटी बरकरार रखते हुए विश्व के सामने हमें उसको लाना है। इसमें और एक दिक्कत है जिस पर पता नहीं मुझे क्या उपाय होगा। जैसे हमारे वारली आर्टिस्ट है, डांग में है, महाराष्ट्र में भी है। अभी वारली कला एक अपनी विशिष्ट शैली की कला है, मगर वारली आर्टिस्ट है, वो आर्टिस्ट है, ध्यान में रखिए। वो कोई कारखाने का मालिक नहीं है। उसको हम बोलेंगे कि अरे भाई उधर जापान में टोक्यो में अभी हमें 1 महीने के अंदर 300 चित्र चाहिए, तो बोलेगा सॉरी ये मैं नहीं कर सकता, क्योंकि वो अपनी उर्मी और ऊर्जा के आधार पर, मन को जब लगता है तब कला आती है ना। ऐसा कला कोई कला का फैक्ट्री थोड़ा ही है। तो मार्केट की कंपल्शंस एक जगह है और हमारी कलाओं की जो विधाएं हैं वो दूसरी जगह है। इसमें समन्वय कैसे बिठाना और मार्केट के तकाजे को उसके आकलन का हिस्सा कैसे बनाना, ये हमारे सम्मुख एक चुनौती है, मगर इसको हमें जरूर झेलना पड़ेगा, क्योंकि ग्लोबल कम्युनिटी इज लुकिंग फॉरवर्ड टू इंडिया फॉर समथिंग वेरी ऑथेंटिक। और ये केवल वारली के बारे में नहीं, हमारे पट्टचित्र है उड़ीसा के, हमारे मधुबनी शैली के चित्र है, जयपुर और राजस्थान के मिनिएचर आर्ट है, तो बहुत सारे विषयों में है। मगर ये एक मुझे लगता है कि सोशियो कल्चरल रिस्पॉन्सिबिलिटी की चर्चा करते समय हमें हमारे सम्मुख एक चुनौती है। बहुत सारी बातें हैं। आपने तो मतलब उद्यमी जगत के कई सारे नए नए प्रयासों को देखा ही होगा। मैंने देखा कि जो टॉप लेवल के स्टार्टअप वाले हैं, उसमें एक नाम मैंने सुना, कोई तरुण जी है जो हाउस इजी नाम से किस पद्धति से घरों के मतलब जो हम तैयार अपार्टमेंट्स को बेचते हैं उसके लिए एक प्लेटफॉर्म बनाते हुए, मतलब आजकल आईटी ऐसा एक इंस्ट्रूमेंट हो गया है, और स्पेशली हमारे जितने सारे एप्स हम निकालते हैं उसके माध्यम से कि लोगों को इजीली एक प्लेटफॉर्म मिल गया है कि ऐप करो, और ऐप के माध्यम से लोगों के बिल्कुल हाथ में ये कुंजी हम दे दो कि जिसके कारण ये आसान हो पाएगा। उसमें भी करने लायक बहुत सारी बातें हैं। हमारे एक मित्र है, उन्होंने अपने रेस्टोरेंट में एक प्रोसेस चलाई कि आप अगर खाना आधा छोड़ेंगे तो आपको जुर्माना देना पड़ेगा। आपको जितना खाना है उतना खाओ, तबीयत से खाओ, मगर आप छोड़ेंगे तो आपको अधिक लगेगा, अगर नहीं छोड़ेंगे तो 10% आपको रियायत।
समथिंग ऑफ दैट। दिस रिक्वायर्स टू बी इंसेंटिवाइज, क्योंकि अन्य देशों में ये चलता है या कुछ प्रदेशों में भी चलता है, भारत में भी, उत्तर भारत में ये चलता है कि छोड़ दो भाई, कोई बिगड़ता नहीं। मगर दक्षिण में ये वातावरण नहीं है, शायद गुजरात में, महाराष्ट्र में ये वातावरण नहीं है। तो ये जो हमारी संस्कृति, सभ्यता, हमारी सोच, जीवन के प्रति हमारा दृष्टिकोण, इनको अभिव्यक्त करने वाली अगर कुछ चीजें हम एंटरप्रेन्योरशिप के माध्यम से नए उसूलों के आधार पर अगर समाज में स्थापित करने की कोशिश करेंगे, तो मैं मानता हूं, अभी एक समस्या हम देख रहे हैं, जो 12वीं कक्षा के छात्र हैं वो आजकल अपने कॉलेज में जाते ही नहीं, वो केवल क्लास में जाते हैं, ट्यूशन क्लास में, और कॉलेज उसको सर्टिफिकेट देता है अटेंडेंस का। ये जैसे ब्लैक इकोनॉमी है, वैसे एक ब्लैक एजुकेशन सिस्टम है। ये गलत है, मगर ये है। तो क्या इसके ऊपर कुछ इनोवेटिव तरीके से हम उपाय ढूंढ सकते हैं? जैसे अगर कॉलेज में आप छात्र जाते हैं तो कॉलेज में जाना ये एक बात है, और अटेंडेंस आपका नहीं है तो कुछ उसकी व्यवस्था है, या आप अटेंड करोगे तो उसकी कुछ अलग व्यवस्था है। कहीं ना कहीं हमें इसके बारे में सोचा जाना चाहिए, क्योंकि गुरुकुल व्यवस्था, शिक्षा में गुरु शिष्य संबंध, ये भी हमारी एक बहुत बड़ी संपदा है, और उसको अगर हम जीवित नहीं रखेंगे तो विश्व में और कोई जीवित नहीं रखेगा। इसके बारे में एक उदाहरण भी मुझे देना है, वो मैं अंत में दे दूंगा जरूर, जो हमारे लिए बहुत उद्बोधक है। आजकल बहुत सारे घरों में हम देखते हैं कि बेकार का सामान भी बहुत रहता है, उसको हम छोड़ भी नहीं पाते, रखने में भी दिक्कत है। तो हमारे शिवराज सिंह चौहान ने एक कार्यक्रम किया था भोपाल में, जब वो मुख्यमंत्री थे, एक डिपार्टमेंट में बनाया उन्होंने, कई लोगों ने किया होगा, गुजरात में भी किया होगा, नॉट ए वेरी न्यू थिंग, कि एक संडे को किसी एक स्थान पर कोई बड़े हॉल में आपको जो नहीं चाहिए वो दोपहर 2 बजे तक ला के रखो, और 2 बजे के बाद उसको जो भी ले जाना है वो ले जाए। तो मैं मानता हूं कि ये भी हमारी भारतीय संस्कृति, सभ्यता, सामाजिक रचना, संस्कृति इसके अनुरूप है। ऐसे भी अगर कुछ हम प्रयास कर सकते हैं तो मैं मानता हूं कि जो ईज ऑफ लिविंग की बात प्रधानमंत्री करते हैं और हम सब उसी की खोज में रहते हैं, तो उसका कुछ न कुछ उपाय शायद हम ढूंढ पाएंगे। कुल मिलाकर मुझे लगता है कि भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता, भारत की प्रणाली, जीवन के प्रति हमारा दृष्टिकोण, इस दृष्टि से बी इंडियन बाय इंडियन तो हम करते ही थे, बट व्हेन वर्ल्ड, whether you like it or not, is becoming a market, तो मैं मानता हूं कि बी इंडियन सेल इंडियन, ये भी हमारा कुछ नारा हो सकता है। हम भारतीय चीजों को विश्व के बाजार में बड़ी ताकत से अगर उपस्थित करेंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि विश्व चाहेगा कि हम ऐसा करें। योगी अरविंद ने एक बहुत बड़े स्टेटमेंट में एक बार कहा था कि शायद विश्व की ऐसी कोई समस्या नहीं है जो भारत में उपस्थित नहीं है। यू नेम ए प्रॉब्लम एंड इट इज प्रेजेंट इन इंडिया। बट ही एडेड फर्दर, मगर इन सारी समस्याओं का समाधान ढूंढने की क्षमता भी भारतीय संस्कृति में है, और इसलिए हम विचलित न होते हुए भी, इतने साल इतने लोग आए, इतने आक्रमण हुए, इतना हमारे ऊपर परचक्र का पूरा वातावरण रहा, बावजूद इसके हम अपनी भारतीयता को, भारतीय सभ्यता को सुरक्षित रख पाए। क्या बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, तो ये है। और ये जो हमारी जिजीविषा है, मैं मानता हूं कि that also further emboldens all of us to, in a way, take our original things, the part of our culture, into the global market. विश्व आज हमारी ओर इन उम्मीदों के आधार पर देख रहा है, और ये हमें अच्छा लगे इसलिए मैं नहीं कह रहा हूं। प्रधानमंत्री जी ने एक छोटा सा स्टेटमेंट किया ये यूक्रेन वॉर के बारे में कि दिस इज नॉट द ईरा ऑफ वॉर। सब लोग बोलने लगे यस इज व्हाट मिस्टर मोदी सेज इज करेक्ट, दिस इज नॉट द ईरा ऑफ वॉर। तो ये है, भारत जो कहेगा उसको विश्व में मान्यता है। हम इसका कितना अनुकूलता से लाभ उठाएंगे ये हमारे ऊपर निर्भर है। लास्टली 2 छोटी उदाहरण, छोटे कहानी जैसी ही है एक दृष्टि से, बट वन इज ए रियल एक्सपीरियंस एंड अदर वन इज ए काइंड ऑफ एन एनेक्डोट। एक हमारे मित्र है जो पहले यहाँ अरुणाचल प्रदेश में काम करते थे, शिक्षक का, बाद में अमेरिका गए। उनकी पत्नी फिजियोथेरेपिस्ट है, तो उसको वहाँ अच्छा जॉब मिला, तो ही ऑल्सो माइग्रेटेड एंड ही काइंड ऑफ continued his education there, became a teacher and started teaching there.
तो 10-15 साल बाद जब हम मिले तब मैंने पूछा कि यहाँ की वहाँ की शिक्षा में क्या अंतर है। तो उसने कहा कुछ चीजें यहाँ भी अच्छी है, कुछ चीजें अपने यहाँ अच्छी है। तो मैंने कहा कुछ उदाहरण। तो बोले मेरा व्यक्तिगत एक अनुभव ऐसा रहा कि मैं जब 12वीं की कक्षा के छात्रों को पढ़ाता था, सारे 15-16 साल के बच्चे, तो अदरवाइज बहुत टैलेंटेड ऐसा एक छात्र, तेज तर्रार, बहुत सिंसियर पढ़ाई में, वो सुबह 11 बजे के मेरे क्लास में मुझे झपकियां लेता नजर आया। ही वॉज डोजिंग ऑफ। तो शुरू में तो एक दिन मैंने उसको छोड़ दिया, दूसरे दिन भी वैसा, तीसरे दिन भी वैसा, तो जरा जाकर थोड़ा हिलाया उसको तो वो भी जग गया। 5वें दिन भी वही, तो मैंने उसको खड़ा किया बेंच पर। तो लड़के ने बगैर मेरी कुछ बात सुने तत्काल मुझे कहा कि सर, टीचिंग इज योर जॉब, वेदर टू लिसन टू योर लेक्चर और नॉट इज माई लिबर्टी। मतलब आप जितना मर्जी पढ़ाओ, मैं सोता रहूंगा, डोंट डिस्टर्ब मी। अलग शब्दों में तो यही है। तो अभी भारतीय शिक्षक को इतना ब्लंट जवाब, और वहां का वातावरण तो पूरा इंडिविजुअलिज्म का है, लिबर्टी का है, ये सुनने का ये आदि नहीं था। तो ये तत्काल उसका कुछ बहस भी नहीं कर पाया। ही डिसाइडेड टू लेट गो। मगर मन में ये उत्कंठा रही कि ये सोता क्यों है। अदरवाइज इतना अच्छा लड़का, इतने गंभीरता से सिंसियरली अटेंड करता है, अभी ये सोने लगा 11 बजे सुबह। तो उसने उससे डायलॉग करने की कोशिश की। द बॉय वॉज अनयील्डिंग। मगर इसने बहुत पीछे पड़ा, तो बच्चे ने कहा कि ठीक है, हम चाय पियेंगे, आई टेल यू। तो बच्चे ने कहा कि सर, मैं जानता हूं कि आपके मन में बड़ी चिंता भी है एक दृष्टि से। तो मेरे घर में थोड़ी समस्या है, टर्बुलेंस है। मेरे माता ने अब मेरे लिए एक नए पिता घर में लाए हैं। अब ये जो नए पिता है वो नहीं चाहते कि मैं घर में रहूं। वैसे भी वहां पर 15-16 साल के बच्चे कुछ अलग हो जाते हैं घर से। तो वो मुझे प्रेशराइज कर रहे हैं कि मैं कहीं हॉस्टल में जाऊं, कहीं छोटा बड़ा कोई शेयरिंग ऐसा कुछ करूं, कॉर्ड बेसिस पर, वॉटेवर। तो मैं हर रोज झगड़ता रहा कि मैं इस घर का हूं, आप कैसे धकेल सकते हो मुझे बाहर कर, वगैरह वगैरह। मगर मैं तंग आ गया, हर रोज हमारी बहस होती है। तो मैंने उनको कहा कि गिव मी 6 months, आई विल ट्राई टू accumulate some funds and I will go। मगर अभी फंड है कहाँ। तो इसलिए मैं रात को 10 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक मैकडोनाल्ड की एक दुकान में मैं नौकरी करता हूँ। 5 बजे घर आता हूँ, सो जाता हूँ, सुबह 9 बजे उठकर नहा धोकर 11 बजे की क्लास में आता हूँ। बट इट इज ह्यूमनली इम्पॉसिबल फॉर मी टू रिमेन अवेक, इसलिए मैं झपकियां लेता हूँ। मगर छात्र ने आगे कहा कि सर, मुझे पढ़ाने वाले कुल मिलाकर 15 शिक्षक हैं, आप ही अकेले भारतीय हैं, बाकी किसी को चिंता नहीं होगी। आप भारत से है इसलिए आपको चिंता होगी कि मैं सोता हूं। ये गुरु शिष्य परंपरा है, ये ओनरशिप। और मैं मानता हूं कि ये हमारी संस्कृति की हमें मिली हुई एक विरासत है, एक देन है, जिसमें हम मनुष्य संबंधों को इतना महत्व देते हैं, विच इज सो वेरी प्रेशियस। हमने देखा कि हमारे घरों में सारे अंकल नहीं होते, सारे कजिन नहीं होते, मेरा भाई अलग, मामा अलग, चाचा अलग, बिकॉज वी रिस्पेक्ट एवरी अदर रिलेशनशिप बट विद इन दी फैमिली। तो ये जो हमारी खूबी है, इसका भी हमने सम्मान करना चाहिए, सुरक्षित रखना चाहिए। और मैं मानता हूं कि विश्व समुदाय के सम्मुख भी इसको लाना चाहिए। मैं जानता हूं कि ऐसी सारी बातों को करने के लिए बहुत ऊर्जा भी लगती है, अपना अपना उद्योग संभालना और बाद में ये सारी चीजें करना इतना कोई आसान नहीं होता। हमारे लिए बोलना तो आसान होता है, आप लोगों को करना तो कठिन होता है, आई एम अवेयर ऑफ दैट। मगर ये कठिन आसान ये तो चलता रहता है। सवाल आता है कि हमारी हिम्मत कितनी है, हमारे में दम कितना है। तो इसको दर्शाने वाली, मतलब हमारा रेजोल्यूटनेस, हमारा पॉलिटिकल विल जिसको बोलते हैं, वो कितनी है हमारे अंदर। तो एक कहानी बताते हैं किसान की, एंड दैट इज द लास्ट थिंग दैट आई एम शेयरिंग विथ यू। कि एक किसान था और उसके पास एक भैंस थी। तो अचानक से उसके ध्यान में आया कि भैंस को एक कुब्ज निकल कर आया है, लंप जैसा। तो क्या करे, अभी ये बड़ा विचित्र सा मतलब बीमारी है। तो पशु चिकित्सक के पास लेके गया। चिकित्सक को भी ऐसी कभी सामने नहीं आई थी बीमारी, तो ही वाज आल्सो काइंड ऑफ परप्लेक्स्ड।
तो उसने कहा कि मैं ढूंढता हूँ, थोड़ी किताबें वगैरह ढूंढी, तो उसने कहा कि एक दवा मुझे मिली है, मगर उसको एडमिनिस्टर करने की, दवा देने की पद्धति बड़ी विशिष्ट है, आपको संभव होगा तो मैं देता हूँ। तो किसान बोला कि आप जो कहोगे वो मैं करूँगा, क्योंकि इसके दूध के ऊपर मेरा घर खर्चा निकलता है, तो प्लीज टेल मी, आप बताइए क्या करना। तो उसने कहा कि मैं आपको गोली का एक पूरा रसायन बना के गोलियां दे देता हूँ, मगर वो अगर भैंस चबा चबा के खाएगी और बाद में पेट में जाएगा तो उसका उपयोग नहीं, वो डायरेक्ट पेट में जानी चाहिए। तो किसान कहता है कि आप, मैं अनपढ़ हूँ, गरीब हूँ, इसलिए मेरी मजाक कर रहे हैं, ऐसे कैसे होगा? मुख से ही खाएगी, वो चबाएगी, गले से वो अंदर जाएगी, ऐसा ही तो होगा, ऐसे कैसे जाएगा? तो पशु चिकित्सक बोलता है, नो देयर इज अ वे, मैं बताता हूँ ये गोलियां टैबलेट कैसे देनी। उसने कहा कि एक बांस ले लो, बाम्बू जो हॉलो है अंदर से, उसका एक छोर भैंस के मुख में दे दो, दूसरा अपने मुख में डालो, बीच में गोली रखो और जोर से फूंक मारो, इतनी जोर से कि वो डायरेक्ट उसके पेट में ही जाएगी और उसकी जो बीमारी है वो समाप्त हो जाएगी। किसान बड़ा आनंदित हो जाता है, घर जाता है, 8-10 दिन बाद वापस आता है। डॉक्टर देखता है कि चलो इसका मतलब कुछ नतीजा आ गया। जैसे निकट आता है तो देखने को मिलता है कि किसान को ही कुब्ज निकल कर आया है। तो चिकित्सक पूछता है कि ये क्या हुआ? तो किसान कहता है कि आपने जो कहा वैसा ही मैंने किया, मगर इसके पहले कि मैं फूंक मारूं, वो भैंस ने ऐसी जोरदार फूंक मारी कि दवाइयां उसके पेट में जाए बगैर मेरे पेट में गई, उसकी बीमारी दूर होने का तो नाम ही नहीं, मुझे इस बीमारी ने पकड़ लिया। सो द मूड क्वेश्चन इज कि किसमें कितना है दम। हम अगर अपनी अच्छाइयाँ, अपनी क्षमताएं, अपनी संपदा संस्कृति की और समाज की, इनके ऊपर एक बड़े आत्मविश्वास के साथ सोचेंगे तो मैं मानता हूं कि विश्व समुदाय आज हमसे जो अपेक्षाएं कर रहा है उन पर खरा उतरने की हमारी कोशिश निश्चित रूप में सफल होगी। वही होगी हम जैसे उद्यमियों की सामाजिक सांस्कृतिक दायित्व की परिकल्पना। बहुत बहुत धन्यवाद। ये तालियों की गूंज हमारे सामने कैसे समाज का निर्माण हो सकता है, व्यक्ति द्वारा संस्कार सिंचन कैसे हो सकता है, मेंटरशिप कैसे हो सकती है। जब हमारे नरेंद्र मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री श्री कहते हैं कि हमको विश्व गुरु बनना है, तो लगता है कि ये मेंटरशिप का ये लेसन 1 घंटे के दरमियान आपने बहुत बढ़िया हमें दिया है। तालियों की गूंज जो आगे बजी है वो मुझे लगता है कि उससे कहीं ज़्यादा, अगर हमको लगता है कि ये आपका जो प्रेरणा पीयूष समय मिला है उसका अगर फीडबैक देना है तो मुझे लगता है कि 2 तरीके से हमको ये फीडबैक देना चाहिए हमारे अतिथि को। एक तो हमारी तालियों की गूंज की नाद ये बताएगी, ऊंचाई नाद ये बताएगी कि हमें कितना अच्छा लगा है, और दूसरी बात हमें ये बताएगी कि हम कितना निरंतर ताली की गूंज बजा सकते हैं। तो हम भावक के तरीके से हम आपको ये हमारा फीडबैक देंगे। थैंक यू सो वेरी मच। एक छोटी सी बात कहने की लालच में नहीं रोक सकता हूँ। हमारे जैसा एक एंटरप्रेन्योर, चैम्बर ऑफ कॉमर्स का प्रतिनिधि मेंबर, एक व्यस्त बिजनेसमैन अपने 31 मार्च वाले समय के नजदीक था और वो घर जाता है और उसे ऑफिस से काम करना है, उतना ही काम घर जाके भी करना है, व्यस्तता काफी है। घर पे पहुंचता है तो जैसे ही बेल बजाता है, डोरबेल बजाता है, सामने अपने बच्चे को, छोटे से 4 साल के बच्चे को पाता है जो पांव से लिपट जाता है और कहता है कि पापा पापा आ गए। वो ऑफिस से तो आ गया है लेकिन ऑफिस अपने साथ ही लाया है। बच्चे को अपने से दूर करते हुए बच्चे की मां को कहता है कि इसे संभालो,
मुझे और भी कुछ संभालना होता है। लेकिन बच्चा कहाँ रुकने वाला था, उसको तो पापा चाहिए था। कुछ कुछ समय के बाद बच्चा अपने पिताश्री को डिस्टर्ब करता है काम करते हुए, उनके पास आता है, आप मेरे साथ खेलो ना कुछ समय के लिए, थोड़ा समय मुझे भी दो ना। ये बार बार होने के बाद पिता ने सोचा कि इसको किसी धंधे पे लगाना पड़ेगा। धंधे लगा रहा है, धंधे लगा रहा है। तो पिता ने अपनी ऑफिस बैग में से, ब्रीफकेस में से जो भारत का नक्शा था वो उसने निकाला और उसने फाड़ दिया, लीरा लीरा कर दिया, और बच्चे को कहा कि मैं खेलूंगा, लेकिन एक काम कर, ये जो कागज के टुकड़े हैं ये जोड़ के तू ले आ, फिर मैं तेरे साथ खेलूंगा। पापा को विश्वास था कि ये घंटे भर का काम, 2 घंटे भर का काम आसानी से बच्चे से होने वाला नहीं है। लेकिन उनके आश्चर्य के सामने बच्चे ने सिर्फ 10 मिनट के अंदर, उससे भी कम समय में, वो पूरा कागज पिता के सामने रख दिया कि चलो अब खेलते हैं। पिता सोच में पड़ गए कि 4 साल का लड़का भारत का नक्शा जोड़ के ले आया, राष्ट्र को जोड़ के ले आया। पिता ने अपना आश्चर्य बेटे को पूछा तो बेटे ने कहा कि सर, माय डियर फादर, आपने जो कागज दिया था उसके पीछे एक व्यक्ति का चित्र था, मैंने व्यक्ति को जोड़ा है और राष्ट्र निर्माण हुआ है। इतनी बढ़िया बात यहाँ पे 1 घंटे के दरमियान हुई है कि अगर व्यक्ति में संस्कार है तो समाज है, और समाज वही राष्ट्र का निर्माण करता है। कोटि कोटि वंदन आपको, आज के हमारे प्रमुख व्यक्तित्व, हमारे आज के वक्ता को कोटि कोटि वंदन। अभी ये मंच खुला है आप सबके लिए, क्वेश्चन आंसर के लिए। आपके प्रश्न, माइक्रोफोन दिया जाए। हम संक्षिप्त में रहेंगे और सवाल ही करेंगे। Good evening, sir. So my question is, sir, in this digital era, with AI and automation in disrupting labor markets, entrepreneurs now have unprecedented responsibility in shaping socio-economic landscape. So how should an Indian entrepreneur should balance technical advancement with cultural and ethical consideration, seeing in our nation where job security and social stability are locked parallelly? I mean, everybody knows that it is not an easy thing. It is easier said than done. And especially artificial intelligence, virtual reality, augmented reality, all these, I mean, new technologies, as you are rightly pointing it out. But I believe there are examples in other countries where these technologies have also been put to use for not exactly job creation, but some kind of a business creation. If we study that, again, this requires deep insight gathering. It's a research project kind of, as to how Japan is doing, for example, or let's say how New Zealand or maybe Finland is doing, for example. So these countries have, by this time, almost mastered these new technologies, and they have created some new business propositions out of that. If we study them and try to incorporate some manpower element also into it, perhaps we would be able to ride on this wave of new technologies. ये आसान नहीं है, मैं भी जानता हूँ, क्योंकि टेक्नोलॉजीज की ताकत इतनी है कि वो मनुष्य की सहभागिता को नकार ही देती है। एक दृष्टि से किसी न किसी पद्धति से अगर हम उसको ये जोड़ सकते हैं तो मैं मानता हूँ कि, जैसे मैं उदाहरण दूंगा कि बैंकों में, यहाँ पर बैठे हुए लोग भी इसका अनुभव कर रहे होंगे कि सीनियर सिटीजन्स को बैंक में अपने पेंशन के लिए जाना, ये एक टाइम पास एक्टिविटी है। अभी आपने उनको कार्ड दिया, एटीएम में जाओ और कभी निकालो, वो यूज नहीं करते, क्योंकि उनको बैंक में जाते हैं, वो मैनेजर के साथ मिलते हैं, 10 मिनट बात करते हैं, मैनेजर को तंग आता होगा, मगर वो भी उनका उम्र देखते हुए उनको थोड़ा सम्मान भी देता है। अब ये भारतीय वास्तविकता है, क्योंकि भारत में रिलेशनशिप का अपना एक महत्व है। तो उसका मेल कैसे लगाए, इसके बारे में थोड़ा सोचा जाना चाहिए। वी कैनॉट इम्पोज ऑल दीज थिंग्स,
बट एट द सेम टाइम थोड़ा इनका तालमेल कैसे बिठा सकते हैं इसके बारे में थोड़ा अध्ययन होना मैं मानता हूँ जरूरी है। जब ये सारे ऐप आए, अभी ब्लिंकिट वगैरह सब लोग तो उसी पे मंगाते हैं, तो वो जो किराना बेचने वाले के साथ हमारा रिलेशनशिप पैदा होता था वो आज नहीं है। उसके कुछ लाभ भी है, कुछ हानि भी है। लाभ कम है शायद, हानि बहुत ज्यादा है। मतलब जब मैं छोटा था तब हमारे किराने की दुकान के यहाँ एक स्टिकर लगा हुआ था, क्या वो बड़ा आध्यात्मिक होता है, तू क्या लाया था कि तू ले जाएगा कुछ, मतलब एकदम ऐसी बात पूरा जीवन का तत्व क्या नहीं वो कि मतलब हम चाहे 1 किलो आटा ले जाने के लिए मिलता था तो काफी बहुत। अभी ये रिलेशनशिप अभी वो ऐसी नहीं मिलेगी आपको, तो वी हैव टू बैलेंस दैट, बट परहैप्स आवर क्रिएटिव टैलेंट रिक्वायर्स टू बी एम्प्लॉयड, हाउ टू kind of use these technologies but still not to become a slave of them. थैंक यू। नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस, एक हाथ वहां पे उठा है, एक हाथ यहाँ पे उठा है। ये 2 आखिरी सवाल रहेंगे। सर मैं अगर आपको परमिशन हो 2 मिनट अपनी बात डिटेल में क्वेश्चन नहीं पूछना, कुछ सॉल्यूशन शेयर करना चाह रहा हूँ। नहीं, क्वेश्चन ही आपको पूछना है, बाकी की बातें ये मंच के बाद भी हो सकती है। नहीं, मेरे को आपसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछना, जो आपने प्रॉब्लम्स बताई है अगर उसको जैसे हम लोग डेली फेस करते हैं तो अगर उसको सॉल्यूशन को आप फॉलो करो तो इजी हो जाएगा, तो मैं कर सकता हूँ। आपकी अनुमति के साथ ही हो सकता है। संक्षेप में बताइए सर। जैसे कि आप बोलते हैं कि जो बेसिकली जो छोटे प्लेयर्स मार्केट में हैं, जैसे आप एंटरप्रेन्योर्स की बात कर रहे हो, तो उनके जो 4-5 बेसिक प्रॉब्लम है, सबसे पहले हेल्थ है। तो अपने को जैसे कि अगर मार्केट में वो मोटापा या ओबेसिटी या दूसरे प्रॉब्लम्स के कारण जो बाहर का खाना खाते हैं वो अलग बात है। अगर घर के साथ लाइफस्टाइल को फॉलो करें तो घर के सब लोगों का ये कहना है कि क्या बनाए। तो अगर लोग एक्सेल सीखते हैं, MS एक्सेल, और अपनी लाइफ को ट्रैक करना सीखते हैं, एग्जाम्पल आज 7 दिन का रूटीन है और आपको 7 दिन में क्या खाना है जो आपकी बॉडी को सपोर्ट करे, तो एक्सेल की मदद से वो आप अपनी लाइफ को ट्रैक कर पाओगे और आप बीमारियों से बच पाओगे। दूसरा है आप बिल्कुल संक्षिप्त रहिए। हाँ, और आज की हमारी उदाहरण दीजिए और फिर हम दूसरी जैसे CRM है। अब जैसे किसी भी एंटरप्रेन्योर्स को अगर क्या बोलते हैं कि कोई भी मार्केट में आता है तो उसे मार्केटिंग करनी पड़ती है, तो उसे ये पता नहीं होता ना किसे कॉल करूं किसे नहीं। उसके अंदर भी अगर वो एक्सेल को चलेगा, और हम लोग को बुला भी सकते हैं। ये आपके पास जो नॉलेज है ना वो शेयरिंग के लिए आप अपना विजिटिंग कार्ड भी हमारे सेक्रेटरी साहब को देना, हम आपको बुलाएंगे, आपका एक सेशन रखेंगे सर। थैंक यू। नेक्स्ट वन यहाँ से था। नमस्ते सर, मेरा नाम CA गोविंद झंवर है। ये पूरा सेशन समझने के बाद में आज की जो यंग जनरेशन है या जो प्रोफेशनल्स हैं, इसको जब इम्प्लीमेंटेशन पे अगर अपन ले जाएंगे तो इसका रियल बेनिफिट मिलेगा इस पूरे सेशन का। तो ऐसे क्या 2 या 3 ऐसे जो स्टेप्स होते हैं ना जो स्टार्टिंग के अंदर में हम लोग कुछ उठाएं ताकि हम है ना इस चीज को प्रैक्टिकली आगे ले जा सकें। थैंक यू। मैंने थोड़ा लिखा भी था मगर मैं बात ज्यादा बोलना नहीं, इसलिए बोला नहीं। तो मुझे लगता है कि हम थोड़ा फिलोसॉफिकल लगेगा बट इट इज नॉट फिलोसॉफिकल, इट इज वेरी प्रैक्टिकल। मुझे लगता है कि हमारे समाज में हम 4 विभिन्न क्राइसिस का बड़ा सामना कर रहे हैं, नोइंगली अननोइंगली, मेनी टाइम्स वी आर ऑब्लिवियस ऑफ दीस क्राइसिस। पहला है क्राइसिस ऑफ पर्पस, जो हम कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, इसका एक सार्थक जवाब अगर हमारे पास है तो मैं मानता हूं कि हमारी दिशा सही है। तो क्राइसिस ऑफ पर्पस है। दूसरा है क्राइसिस ऑफ ऑथेंटिसिटी, मतलब असलियत का अभाव है। अभी हम किसी को भी मिलते हैं तो हाउ आर यू पूछते हैं, दिल्ली में तो कैसे हो ऐसा पूछते हैं, मगर अगर मैं बताऊं थोड़ा रुको मैं बताता हूं मैं कैसा हूं, तो उसके बाद समय थोड़ा ही है। तो इतना फॉर्मल सा हो गया है, इतना सतही स्तर पर हो गया है, इतना आर्टिफिशियल हो रहा है कि जो असलियत की खुमार है, आनंद है, उससे हम मतलब उसका अनुभव ही नहीं आज की दुनिया में, ऐसी एक अवस्था आ रही है। तीसरा है कि क्राइसिस ऑफ ओनरशिप, जिस भी समाज में है, जिस हाउसिंग सोसाइटी में है, जिस संस्था में है,
जिस ऑफिस में है उसकी ओनरशिप हमारी भी है ना। हम केवल ऐसा थोड़ा ही कर सकते हैं। कई लोग अभी देखता हूं मैं, नई पीढ़ी के लोग तो मतलब उनका अपना एक सोच होता है, मगर अपने माता पिता के बारे में भी 4 लोगों के अंदर इतनी गलत बातें बोलते हैं। अरे हमारे फादर में इतने बोरिंग है। अरे आपके पिता है ना भैया, ऐसे 4 मतलब होंगे बोरिंग, ऐसा नहीं कि बोरिंग नहीं होते, मगर यू कैन नॉट डिस्कस दीस थिंग्स लाइक दिस, बट वी डोंट टेक ओनरशिप ऑफ आवर ओन फैमिली, द इंस्टीट्यूशन, द ऑर्गेनाइजेशन। हम हमारे देश की भी तो ओनरशिप अपनी है ना, मगर वो नहीं लेते। हम चीजों को भली बुरी कहना, मतलब पीड़ा समस्या हर किसी को है, नॉट दैट वी आर फ्री फ्रॉम इश्यूज, मगर ऐसा कैसे कर सकते हैं। और चौथा है क्राइसिस ऑफ रिलेशनशिप, तो उसका भी तो मतलब पूरा बंटाधार दिखाई देता है, घरों में, घर के बाहर, सब जगह। तो मैं मानता हूं कि अगर हम अपनी रिलेशनशिप को थोड़ा ऑथेंटिक पद्धति से ओनरशिप लेते हुए बढ़ाएंगे तो हमारा जो पर्पस है, मतलब हम सब अगर जीवन जीते हैं, मतलब जीवन यापन कर रहे हैं, तो उसका कारण ये नहीं है कि दूसरा कुछ करने के लिए नहीं इसलिए जी रहे हैं, ऐसा थोड़ा ही होता है। देयर इज अ पर्पस, और हमारा दर्शन तो हमें यही बताता है। तो मैं मानता हूं कि थोड़ा सा बीच बीच में रुक कर इसको अगर हम थोड़ा सा ध्यान में लाएंगे तो चीजों को सुधारने की कुछ आई नो दैट दिस इज नॉट अ वेरी प्रैक्टिकल आंसर, दिस इज अ लिटिल theoretical and philosophical as well, but I believe life is what it is. Thank you, sir. Chartered Accountant and Group Chairman, Vijay Modi. थैंक यू फॉर गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी। पहले तो बहुत आभार है कि आपने अपना वैल्यूएबल थॉट्स जो है सब्जेक्ट यहाँ डिस्कस किया। मेरा जो क्वेश्चन है सर कि एक सर्वे जो बोल रहा है कि इंडिया का जो ग्रोथ तो दिख रहा है, लेकिन जो अमीर है वो ज़्यादा अमीर होता जा रहा है और गरीब वो ज़्यादा गरीब होता जा रहा है। मिडिल क्लास है वो अपर मिडिल क्लास से लोअर मिडिल क्लास में जा रहा है, गरीब है और गरीब होता जा रहा है। ये सर्वे है, ये गैप डे बाई डे बढ़ रहा है। आपके पास में आपके जानकारी होगी कि सालों पहले महाराष्ट्र में भी बहुत किसानों ने, हजारों लाखों किसानों ने सुसाइड किया था। आज क्राइम रेट बढ़ रहा है, चाहे वो साइबर क्राइम हो या फिजिकल क्राइम हो। यहाँ भी बहुत सारे इंडस्ट्री में आप न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं कि क्राइम रेट बढ़ रहा है और सुसाइड भी बढ़ रहा है। ये जो गैप जो बढ़ रहा है, गवर्नमेंट बहुत सारे प्रोग्राम लॉन्च कर रही है, बहुत सारे स्कीम लॉन्च कर रही है, बहुत सारी पॉलिसीज दे रही है, गवर्नमेंट अपना काम कर रही है, लेकिन ये लैप्स कहाँ है, कहाँ चूक हो रही है, आपसे ये मैं जानना चाहता हूँ। जैसे ऐसा बहुत व्यापक रूप में इसको बताना मुश्किल है, मतलब हर अवस्था में समस्याएं अलग अलग हैं और उसके समाधान भी अलग हैं। मगर एक जो मुझे लगता है कि जो एक संवेदना होनी चाहिए, उपेक्षित, वंचित, शोषित, पीड़ित समाज के अपने ही भाई बहनों के प्रति हमारे मन में जो संवेदना होनी चाहिए, उसका अभाव काफी जगह दिखाई देता है। और उस संवेदना के अभाव में कई संकटों का निमंत्रण भी है। आज कई बार ऐसा लगता है कि देश ठीक से चलता है, इसका एक कारण ये भी है कि जो वंचित समाज है वो शांत है। वो अगर उठ खड़ा होता है तो देश का इस तरीके से चलना कोई आसान नहीं है। और समय नहीं है, मगर मैं एक छोटी, ये हमारे पुराणों में एक कहानी है, वेरी इंटरेस्टिंग। ये एक उदाहरण है भारुंड नाम के पंछी का। ये एक हाइपोथेटिकल बर्ड है, ये कोई वास्तविकता में नहीं है। तो इसका वर्णन ऐसा है कि ये पक्षी को 2 मुख है, 2 चोंचे हैं, मगर उसका शरीर एक ही। और जो बनाया गया उस पंछी को, तो बताया गया कि एक मुख ये भाग्यशाली है, दूसरा अभागी है। जैसे वो बोलते हैं ना कि 5वें दिन वो आती है देवता और यहाँ पर लिख देती है ललाट पर, तो उसके एक के ललाट पर लिखा है कि तू भाग्यशाली है, दूसरे को बोला है तू अभागी है। तो ये विचरण करता है। तो जो अभागी मुख है उसके सम्मुख हमेशा सड़े गले, दुर्गंध युक्त, खाने के लिए अपात्र ऐसे फल ही आते रहते, क्योंकि अभागी है, क्या करेगा। और जो भाग्यशाली है उसी के पड़ोस में है, एक ही शरीर का अंग है, उसको हमेशा
बड़े स्वादिष्ट खाने के लिए एकदम सही मधुर ऐसे फल आते रहते हैं, दोनों पास में ही है ना। तो ये जो अभागी है वो उसकी ओर देखता रहता है और बोलता है कि थोड़ा मुझे दे दो ना, इतना अच्छा बढ़िया तो खा रहा है तो जरा मुझे भी दे दो थोड़ा। तो ये जो भाग्यशाली है बोलता है कि देखो भैया, ये भगवान ने तय किया है कि मैं भाग्यशाली तू अभागी, तो मुझसे अपेक्षा मत कर, ये ऐसा ही चलेगा। और वो आज की युवा पीढ़ी ऐसा करते हैं ना, वैसे वो बोलता है व्हाट कैन आई डू, तो चलता रहता है। तो एक दिन आता है कि ये अभागी मुख के सम्मुख एक विषैली फल आता है, पॉइजनस फ्रूट। तो ये जो भाग्यशाली है वो दिमागदार भी है, तो उसको ध्यान में आता है कि ये खाएगा तो हम दोनों का अंत होगा, क्योंकि शरीर तो एक ही है। तो वो उसको बोलता है अरे मूर्ख, ध्यान में आया क्या, ये विषैली फल है, इसको खाएगा तो तेरा और मेरा दोनों का अंत होगा। तो अभागी बोलता है कि व्हाट कैन आई डू। मतलब इसमें इतना गहन अर्थ है, मैं मानता हूँ कि हमारे देश का जो ऐसा निर्बल वर्ग है, शोषित पीड़ित वर्ग है, वो अगर इस पद्धति से सोचेगा तो हमारा भी जीना हराम होना है, ये तय है। इसलिए संवेदना का महत्व है। और इस दृष्टि से समाज के ऐसे वर्गों के प्रति आप लोग तो करते ही रहते हैं, ऐसा नहीं कि कोई कूद करता नहीं, उसमें अधिक मनोयोग से कितना हम करेंगे, रिजल्ट ओरिएंटेड कितना करेंगे। जैसे CSR की बात है, केवल चेक लिखना CSR नहीं है। मूल कल्पना में तो ऐसा होना चाहिए था कि कॉर्पोरेट के लोग भी सामाजिक कार्य में कुछ समय दें। मैंने एक पार्लियामेंट में बिल रखा था कि प्राइवेट मेंबर बिल कि हमारे CSR का 25% के हमारे जो हेरिटेज साइट्स है उसके लिए काम में लाना चाहिए। और दूसरे एक सुझाव मेरा था कि अगर किसी कंपनी के 200 कर्मचारी अपने एक सप्ताह के 3 घंटे देते हैं तो उसकी जो वैल्यू है वो भी CSR में काउंट होनी चाहिए। वो अगर झुग्गी झोपड़ी में जाके क्लासेस ले रहे हैं, कहीं हॉस्पिटल में जाके मरीजों की सेवा कर रहे हैं, तो दैट इज ऑल्सो CSR। इनफैक्ट दैट इज ए मोर इफेक्टिव CSR। केवल चेक लिखने से नहीं होगा, मगर अभी एक स्वरूप हो गया, क्या करें उसमें। सो संवेदना, आई थिंक दैट इज द की, वी हैव टू बी सेंसिटिव। थैंक यू सर। ग्रुप चेयरमैन एंड ग्रुप के चेयरमैन श्री गिरधर गोपाल मुंद्रा जी। गिरधर गोपाल मुंद्रा, आपके सामने परिचय इस रूप में दे रहा हूँ। मैं मध्य प्रदेश का होशंगाबाद जिले का पिपरिया का रहने वाला हूँ, 44 साल से सूरत में हूँ। क्योंकि आप MP के प्रभारी रहे हुए हैं और मेरे कजन्स हैं आपके पास आए हुए हैं जो भी पॉलिटिकली उसके लिए, तो अविनाश जी दलाल के माध्यम से मैंने आपसे बात भी की है। मेरा प्रश्न आपसे ये है, आपने बहुत अच्छी बात कही आज कि मान लीजिए 100 स्टार्टअप हैं, उसमें से 52 सक्सेस हैं, 48 अनसक्सेस हैं। थोड़ा सा फील्ड में भी आप जानकारी देंगे क्यों अनसक्सेस है, कहीं आपने स्टडी की हो, ताकि यहाँ के, चूंकि हमारी इंडस्ट्री से MSME इंडस्ट्री कहलाती सूरत की, तो थोड़ा सा आप टिप्स देंगे बहुत लाइट में, तो शायद दैट विल बी मोर प्रिफर्ड। मेरे कहने का कोई रिसर्च का आधार नहीं है, दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ इम्प्रेशंस एंड मे बी यू पीपल हैव मोर इनसाइट देन मी। फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि युवाओं को प्रोत्साहन देते देते उनकी जो कंसेप्ट है किसी भी स्टार्टअप के पीछे की, उसको जितना तराशा जाना चाहिए, वो तराशने की व्यवस्था न बैंकों में है, न उनको कैपिटल सप्लाई करने वालों के पास है, न ऐसा कोई लेबोरेटरी है कि जिसमें वो संकल्पना को तराशा जाए और उसके आधार पर बताया जाए कि दिस इज ए डिसेंट एंड वर्केबल बिजनेस प्रपोजिशन, गो अहेड। ऐसा कोई नहीं है। वो दिमाग लगाता है, बैंकों को भी इतना ऋण वितरण करना है तो वो भी करते हैं, माँ बाप भी, इसमें माँ बाप की भी भूमिका है। उनको लगता है कि अरे भाई एक हमारा कुल दीपक कभी व्यवसाय करने को, चलो भाई करो, जो चाहिए वो करो। अरे कैसे करो, वो मतलब आई नो फेलियर्स, वन नीड नॉट बी अफ्रेड ऑफ फेलियर्स, दैट आई नो, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि अपयश के बाद अपयश के बाद ऐसा ही करते जाए। तो इसमें बहुत विवेक की जरूरत है और इसके लिए एक मैकेनिज्म बनाने की जरूरत है जिसका प्रारंभ एक स्ट्रक्चर्ड रिसर्च के आधार पर होगा। बहुत सुंदर साहब, आपने बहुत अच्छा रिप्लाई दिया है। एक शेर याद आ रहा है आपके लिए कि आप जैसे हस्तियों को तसव्वुर की जरूरत नहीं है, काबिल तारीफ है, आपको शब्दों की जरूरत नहीं है।
सर इसके बाद में मंसाली जी का आखिरी सवाल रहेगा। जी सर, स्टार्टअप पे काफी लोगों ने प्रश्न कर ही दिए। मैं मानवीय संवेदना से जुड़ा एक प्रश्न कर रहा हूँ आपसे। जो आपने अपनी गुलाबों की बात की, उसने ऑनलाइन कार्यक्रम के अपनी आजीविका अर्जित की। गुलाबों ही नहीं बल्कि बाड़मेर जिले के मांगणियार जो है, कई पद्मश्री, वो खुद यही बात कर रहे हैं कि देखिए हमारी तरफ कोई नहीं देख रहा। आपने तीजन भाई का देखा होगा, छत्तीसगढ़ की, वो ये समझ लो कि बिस्तर पे पड़ी है, लकवाग्रस्त है। ये हमारी मानवीय संवेदना क्यों नहीं है कि उनके प्रति हम कहीं भी है एक हमदर्दी बताएं। मैं आपको उदाहरण याद होगा महादेवी वर्मा के बारे में, जगन्नाथ पहाड़िया ने क्या बयान दिया था, बड़ा विवादास्पद बयान दिया था, मगर कहीं भी प्रतिक्रिया नहीं आती। आखिर मानवीय संवेदना क्यों सूख रही? बस मेरा प्रश्न इतना था। आपका बहुत सटीक प्रश्न है, मगर मैं मानता हूँ कि इसमें भी हमारा थोड़ा सा दायित्व तो बनता ही बनता है। मैं उदाहरण देता हूँ। आपने कहा, बिल्कुल सही कहा कि तीजन बाई और बाकी लोक कला, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद जिसमें मैं अध्यक्ष रहा, उसके माध्यम से हम भारतीय कलाकारों को विदेश में भेजते हैं। अभी हमारी इच्छा होती थी कि छत्तीसगढ़ के आदिवासी जनजातीय भी जाएं, नागालैंड के भी जाएं, मगर हमारे जो राजदूत महोदय बैठते हैं उनके ऊपर एक प्रेशर रहता है कि कार्यक्रम सफल करना है। सफल करना है का क्या मतलब है? संख्या जुटानी है, 2000 लोग आने चाहिए। तो तीजन बाई को सुनने के लिए नहीं आएगा, मगर बॉलीवुड सॉन्ग के लिए आएगा। तो हमारे ऊपर प्रेशर करते थे, नहीं वो सर बाकी सब ठीक है आपका, बट सेंड अस ए बॉलीवुड डांस ग्रुप। वाह, बॉलीवुड में कोई ये थोड़ा ही है। हमारी जो लोक कलाएं हैं, तीजन बाई है, गुलाबो बाई है, या जो भी हमारे राजस्थान के या गुजरात के ट्रेडिशनल संगीतकार हैं, उनकी आजीविका का कौन विषय करेगा? हमने बहुत झगड़ा किया वहां पर, राजदूत महोदय को समझाया, मगर उनके ऊपर प्रेशर मार्केट का है। आज हो क्या रहा है कि पूरे विश्व में मार्केट ही रूल कर रहा है, और मार्केट के साथ झगड़ने के लिए बहुत साहस की जरूरत है। जो एक विडंबना जो आ रही है कि जो अच्छा दिखना ज्यादा महत्वपूर्ण है अच्छा होने से, और कई बार जो अच्छे दिखते हैं वो अच्छे होते नहीं, और जो अच्छे होते हैं वो अच्छे दिख पाते। मतलब मैं एक उदाहरण देता हूँ। अभी ये कोल्ड प्ले का यहाँ पर इतना बड़ा कार्यक्रम, और मैंने देखा कि कितने, मुझे कोई दिक्कत नहीं है उसमें, जरूर कोल्ड प्ले जो भी है अच्छी बात, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसमें वंदे मातरम भी गाया गया, जनगण में, वेरी गुड, आई डोंट हैव एनी कंप्लेंट अबाउट इट। मगर कोल्ड प्ले जितना महत्वपूर्ण है, क्या उतनी हमारी शास्त्रीय संगीत की परंपरा उतनी ही महत्वपूर्ण नहीं मानी जानी चाहिए? मैं जब आईसीसीआर में काम करता था तो कई सारे संगीतकारों के एक बैठक में हमने तय किया कि भारत के अंदर विमानों में, हवाई अड्डों में जो म्यूजिक चलता है, लिफ्ट में हम म्यूजिक सुनते हैं ना कुछ, वो भारतीय होना चाहिए। तो हमने एक ज्ञापन बनाया, और उस समय हमारे सिविल एविएशन मिनिस्टर थे ज्योतिरादित्य जी, उनको जाकर दिया। उनका बड़प्पन ऐसा हो, बोले कि इतने बड़े बड़े संगीतकार है तो आप बताइए, मैं आपके पास आता हूँ। वो हमारे आईसीसीआर के ऑफिस में आए, हम 10-15 लोगों ने उनको ज्ञापन दिया। उन्होंने तत्काल स्वीकार किया, बोले इसका नियम तो नहीं बना सकते हम, मगर हम एक एडवाइजरी निकालेंगे कि एयरलाइंस में अपने केबिन म्यूजिक जो होता है वो भारतीय बनाना चाहिए। उन्होंने एडवाइजरी निकाली, उसकी छोटी बड़ी न्यूज हो गई, हमें बड़ा अच्छा लगा। तीसरे दिन टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस, महाराष्ट्र का लोक सत्ता, इन्होंने हमारे ऊपर आलोचना करने वाले एडिटोरियल लिखे। उन्होंने कहा कि भारतीय ऐसा क्या होता है। अरे मतलब भारत का संगीत हमें सुनने को मिले, ये उम्मीद के हम ब्राजील में जाकर रखेंगे, यहां नहीं रखनी तो कहां रखनी? मगर ये जो हमारी पहचान है, हमारी अस्मिता है, हमारी परंपरा है, हमारी विरासत है, उसका सम्मान करना और उसके लिए मार्केट बनाना, ये भी हमारा काम है। और अगर ये हम नहीं करेंगे तो दूसरा कोई करने वाला नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ। और आज क्या हो रहा है कि अमेरिकनाइजेशन पूरा हो रहा है, और अमेरिकनाइजेशन में मतलब वो एक किताब आई थी ना, द वर्ल्ड इज फ्लैट, मतलब हर किसी देश को एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिला है ग्लोबलाइजेशन के बाद, ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी में, व्हिच इज गुड। तो इकोनॉमिकली फ्लैटनिंग ऑफ द वर्ल्ड इज ओके। कल्चरली अगर विश्व फ्लैटन हो गया
और हम सब जगह मैकडोनल्ड और केंटुकी फ्राइड चिकन और यही करते रहेंगे तो हमारे पदार्थों का मार्केट कहाँ है? और उसको फैशन और स्टेटस सिंबल के साथ जोड़ा गया। क्यों? हमारे तेजस्वी सूर्या ने मुझे एक अपना किस्सा बताया कि वो किसी देहात में गया तो वहां देहात का किसान और उसका पोती झगड़ा कर रहे थे। दोपहर का समय, ये पानी पीने के लिए किसी देहात के घर के घुस गए तो इसने पूछा कि क्या झगड़ा चल रहा है? तो वो किसान 75 ईयर ओल्ड वो बोला अभी अगस्त महीना चल रहा है, पानी का एक बूंद नहीं, बारिश नहीं आई है और इतने हम चिंतित है। और ये बच्चा मेरा कॉन्वेंट स्कूल में जाकर पढ़कर आता है और सुबह सुबह आकर मुझे बताता है रेन रेन गो अवे, रेन रेन गो अवे। अरे काय का गो अवे? अभी हम पूरा सारा विदेश की मानसिकता से ही, अंग्रेजी से कोई दिक्कत नहीं है, बट वी कैन हैव इंडियन पोएम्स, व्हाई नॉट? तो ये हो नहीं रहा। इसलिए ये हमारी सभ्यता, संस्कृति, हमारी अस्मिता, इसके लिए मार्केट बनाना ये भी हमारा दायित्व है। बातें तो बहुत बढ़िया चल रही है और लगता है कहीं कि हमको रुकना नहीं है। लेकिन मंसाली जी, आपने ये कहा कि यू वांट टू फॉरगो योर क्वेश्चन फॉर डॉक्टर चिंतन पाठक। संक्षिप्त में मंसाली जी ने, ऐसा नहीं है। और चिंतन भाई, आप सवाल करें उससे पहले मैं दो हस्तियों का यहाँ पे रिकग्निशन करना चाहूंगा। हमारे बहुत ही प्यारे पूर्व प्रमुख और डोनेट लाइफ के चेयरमैन श्री निलेश भाई मांडेवाला उपस्थित हैं, इनकी हाजिरी से हम लेते हैं। भगवान महावीर कॉलेज के वाइस चेयरमैन श्री संजय जैन साहब की हाजिरी की हम लेते हैं। सर, आप अपनी जगह पे एक बार हमारे तालियों की चिंतन भाई, your question will be the last one. Thank you very much, Mansari, for cooperating. Thank you. Thank you, sir, for the opportunity. Good evening, sir. सर, बहुत ही अच्छी बात थी। टोटली डिस्कशन में बहुत ही अच्छा डिस्कशन हुआ। मेरा क्वेश्चन सर ऐसा है कि जो चीज़ें जो आपने सजेस्ट की है, ये जो सोशियो कल्चर रिस्पॉन्सिबिलिटी की जो बात है, गवर्नमेंट का कोई ऐसा कुछ है जिसमें सारे ऑप्शंस है, यानी किसी को इनिशिएट करना है? क्योंकि जो आपने बात की, कहीं सारी चीजें किसी को पता नहीं है और कहीं एरिया में पता नहीं। तो अगर गवर्नमेंट की अंदर जो जो चीजें ये एरिया में काम हम कर सकते हैं, अगर वो सजेस्ट करे तो वो जो एंटरप्रेन्योर्स है उसके हिसाब से वो काम कर सकते, ऐसा कुछ सर हो सकता है? थैंक यू सर। जरूर हो सकता है। मतलब गवर्नमेंट के माध्यम से इसको फॉर्मलाइज करने की हम कोशिश करेंगे। आप चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोग अगर कुछ बनाएंगे रचना, तो मैं आपके साथ वित्त मंत्री को मिलने के लिए आऊंगा, रेस्ट एश्योर्ड। मगर गवर्नमेंट के बाहर भी हम तरह तरह की चीजें जरूर कर सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। सारा कोई गवर्नमेंट के माध्यम से होगा नहीं। गवर्नमेंट की क्षमता बहुत है, मगर इस तरीके का सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन हमें ही करना है। वो गवर्नमेंट बहुत ज्यादा नहीं कर सकती। प्रश्नोत्तरी का दौर हम यहाँ पे समापन करते हैं और अंत में दिशा फाउंडेशन के डायरेक्टर श्री रोहित भाई तिवारी जी को गुजारिश करूंगा कि आभार दर्शन करें। आपने इतना पेशेंसली सुना। तो जैसा आज के मुख्य वक्ता जी श्री विनय सहस्त्रबुद्धे जी हैं, उनके नाम में ही लिखा है विनय और सहस्त्रबुद्धे, यानी विनय की एक जो परिकल्पना हम रखते हैं, उनके व्यक्तित्व उनका सबसे बहुत प्रवीण उदाहरण है। और सहस्त्रबुद्धे यानी ऐसे हजार व्यक्तित्व का बुद्धिमत्ता का विषय जो उनके पास है। तो माँ सरस्वती की ऐसी विशेष कृपा रही है सर के पास और आज उनका हमें मार्गदर्शन मिल रहा है। इसके लिए मैं जीतो SGCCI एवं दिशा फाउंडेशन की ओर से सर का मैं हृदय धन्यवाद करता हूँ। सर का एक आप लोगों ने सुना होगा कि ओसामा बिन लादेन बहुत अच्छा इंजीनियर था, लेकिन अगर वो इंजीनियर समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति अगर वो ना सोचे तो वो एक अच्छा इंजीनियर किस कार्य का। तो उसी विषय पे आधारित आज का जो विषय था, द आइडिया ऑफ एंटरप्रेन्योर्स एंड सोशल कल्चर रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक अच्छा एंटरप्रेन्योर की भूमिका क्या होनी चाहिए। तो आपको बहुत बड़े बड़े सेमिनार मिल जाएंगे टेक्निकल भाषा में समझाने के लिए कि आप अपने स्टार्टअप को कैसे 2 डिजिट में या तो जितने मल्टीपल टाइम्स ग्रो कराइए, लेकिन उनके बीच में जो मानवीय गुण होने चाहिए उनका विषय का आज जितने प्रवीणता से लिया, मैं इसके लिए मैं स्वयं बहुत धन्यवाद करता हूं सर कि आपने हमें लाभान्वित किया। और जीतो एवं SGCCI के लिए मैं विशेष आभार करता हूं कि इस विषय के लिए सर को आमंत्रित किया और हम सभी को मौका मिला, इसके लिए धन्यवाद। साथ ही मैं आग्रह करूंगा सर को कि सूरत की धरती को आपका सतत मार्गदर्शन मिले, इसके लिए मैं सभी की ओर से मैं आपसे आग्रह करता हूं और अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद।